What is the future of AI image and video generation? If somebody wants to start a career in this industry, what is the possibilities available? So तीन ऐसे AI टूल जिनके बिना आपको लगता है कि इस टाइम आपकी लाइफ नहीं चलती है. और अगर आपने सिर्फ ये एक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इन नेक्स्ट 30 डेज. आज भी जब मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला चेक मैंने काटा था. इट वाज 2,64,000 समथिंग रुपीज़. If a smart guy learns the technology and he learns where it can be sold, पैसा बनाने का प्रॉब्लम नहीं है. पैसा तो हाँ, पैसा तो बनेगा. Like Sam Altman says, जो ChatGPT founder है, he says that today you will be building $1 billion companies with one man, single person and a AI system. ये होगा. ये हो रहा है. Any tools that you think you tried, spent your time and you did not like them? We pay for education loans majorly with the thought कि हमें नौकरी मिलेगी and we'll be able to repay. So let's say कुलवंत जी, अगर किसी को स्टार्ट करना हो अपना कोचिंग बिजनेस या कोई भी डिजिटल बिजनेस, तो what are the basic assets they need to create and उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? Light 1, Light 2, Light 3, Light 4. Awesome. Hello everyone, welcome to yet another episode of the Success Brew Podcast Season 2. The theme for the podcast is Systems and Scalability. And we have another amazing guest with us who was born and brought up in a city called Fatehabad in Haryana, which was like a 3-kilometer radius with no access to a railway station. So you can understand the kind of opportunities he might have get in his life. But he also studied from a basic level government college. He had a dream to study in America. The dream was shattered, right, for some reason. He got an admission, he got a $16,000 scholarship, but the rest $22,000 were not available. Now, this man went to America not as a student but as a speaker to teach, to grow. And we have a lot more from this 0 to 100 journey of past 16 years and more than that, and we are going to cover. Welcome to our guest, Kulwant Nagi. How are you, sir? I am good, sir, and thank you so much for inviting Thank me. you so much for your time. I'm super happy to be here. Most welcome. And I am super happy to learn all the AI parts from you, the personal segment of your life. Ji. And it has been a crazy time. That we have spoken a bit in the past 1 year, a little bit more, and I learned how being grounded is helpful to a human life. And I think I'm learning this segment in Chandigarh majorly, that how people are building frugally, Yes. happily, and focusing on the more meaningful parts of life. Correct. Rather than showbiz, right? Which I majorly saw in Gurgaon and Delhi. Major cities, yes. Okay, so we have 3 segments of our podcast, Ji. right? First is the personal story. We'll take care of it like 5 to 10 minutes. Okay. And then we'll talk about the systems and the procedures that you use in your business. And the third part is called the Founders Toolkit, where we are going to deep dive into the different kind of tools that you use and you teach to your students. Understood. Right? Okay, so let's start from your personal journey. If you can just share from the part of your birth, you shared that you were born in a city which was a very small city, no access to railway station also. How was that city and how was life in that city? परफेक्ट. तो मैं बहुत छोटे से एक शहर से आता हूँ, जैसे सौरभ जी ने ऑलरेडी बताया. फ़तेहाबाद का मैं रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग फ़तेहाबाद से ही हुई, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हमें अच्छे स्कूलों में भेज पाते. सो आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन हिंदी मीडियम. और जब वहाँ से फिर मुझे किसी ने बताया कि यू शुड डू डिप्लोमा, क्योंकि मैं चीज़ों को ना समझने में शुरू से ही अच्छा था. लाइक मुझे चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेता था, मैं चीज़ों को समझ लेता था, एग्जीक्यूट कर लेता था. तो मेरे उस फ्रेंड ने मेरे में कुछ देखा और अल्टीमेटली ही सजेस्टेड मी कि तुझे डिप्लोमा करना चाहिए. सो इन ईयर 2004 मैंने डिप्लोमा किया. 2007 पास आउट हूँ मैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. वो भी पापा जी ने लोन लेके ही मेरी एजुकेशन किया था. उसके बाद मुझे जो नेक्स्ट बीटेक मैंने किया, आई वाज इन 2007 बैच, वो भी पापा जी ने लोन लेके हम मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवाई. मुझे आज भी याद है 2,64,000 का लोन बना था और हम टाइम पे चुका नहीं पाए थे. तो बैंक वालों की तरफ से नोटिस आ गया था कि आपका घर जब्त होने वाला है क्योंकि आपने लोन टाइम पे नहीं दिया. और लकीली तब मेरा बिज़नेस थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था और
आज भी जब मैं उस मोमेंट को याद करता हूँ थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला चेक मैंने काटा था, इट वाज 2,64,000 समथिंग रुपीज़, और वो मैंने बैंक को दिया था। सो इट्स लाइक स्टोरी की कहाँ से मैं आता हूँ। Wow. जी And mostly like we pay for education loans majorly with the thought कि हमें नौकरी मिलेगी and we'll be able to repay, करेक्ट, which is mostly not true. Not A lot true. of people are 100%. dealing with the education loans जी long after their education has ended. करेक्ट, And- क्योंकि जॉब्स तो रह नहीं Yeah. गई है मार्केट में भी राइट नाउ। अभी सिनेरियो देखें, इट्स लाइक लिटरली Like especially when we talk about engineering and basic level knowledge, जी। like जिसमें generic knowledge है वहाँ पे कोई आपको जॉब दे नहीं रहा है, right? And कौन कौन है आपके परिवार में, like? माई पेरेंट्स, माई यंगर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। Okay. And you have kids? I have 2 kids now, one 5 years old daughter and 2 years old boy. Awesome. So after your education, जी what was your first like a job or like, the business you spoke about जिससे आपने वो 2,64,000 का चेक काटा? वो पहला बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी लाइफ जी में. जी बिल्कुल। So वो क्या बिजनेस था एंड कहाँ से आपने शुरुआत की? ओके, तो 2010 जैसे ही मैं पास आउट हुआ, लेकिन उसमें एक स्टोरी मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि 2010 में आई गॉट एडमिशन इन यूएस। इट वाज इन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। फैसिनेटेड सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस इंडस्ट्री में एक नॉर्मल जॉब के मुकाबले में लगभग 5 से 8 गुना तक की सैलरी उन दिनों में थी। और मेरे ही एक क्लासमेट की जॉब लगी थी 2010 में। हिज पैकेज वाज 63 लाख रुपीज़। इट वाज अ ह्यूज अमाउंट बैक इन 2010। तो मेरे माइंड में था कि यार मुझे भी VLSI करना है। सो मैंने यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। आई गॉट एडमिटेड, $16,000 की स्कॉलरशिप मिली, लेकिन जो बाकी पैसा था अरेंज करना था वो पापा जी के पास नहीं था। एंड अल्टीमेटली वी हैड टू ड्रॉप द आइडिया। तो उन्होंने बोला कि यार पैसा तो नहीं है। फिर ये बात है 2010 के एंड की लगभग। तो फिर वही एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एक ही होप होती है कि चलो यार बैंक के पास जाओ या रिश्तेदारों के पास जाओ। तो पहले हम रिश्तेदारों के पास गए, जो भी रिश्तेदार थे या आसपास थे सभी लोगों को पहले तो ये बताया पापा ने कि बेटे का एडमिशन हो गया यूएस में, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। इतनी स्कॉलरशिप भी मिली है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा अगर दे दो हमें तो मैं इसको बाहर पढ़ने के लिए भेज सकता हूँ। तो आपको सभी को पता है कि रिलेटिव्स तो कभी हेल्प नहीं करते। तो वहाँ से फिर एक आखिरी दरवाज़ा ये था कि बैंक्स की पहले एजुकेशन बैंक्स पे लोन लेके की है तो दोबारा बैंक का दरवाज़ा खटखटाओ। बैंक्स के पास गए तो उन्होंने सभी ने ये बोला कि पहले NOC लेके आओ, जिस बैंक से आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है पहले वो वाला लोन क्लियर करो तब अगला लोन मिलेगा। तो तब तो पैसे ही नहीं थे यार, लोन तो सोच भी नहीं सकते थे कि पुराना लोन 2-2.5 लाख का लोन कैसे क्लियर करते। तो फाइनली फिर यही डिसाइड हुआ कि इंडिया में रुको, यहीं रह के कुछ करो। और मैं इमोशनल हो जाता हूँ ये बताते कि मैं 3 महीने तक सोया भी नहीं था, मैं खाना भी नहीं खाता था, मैं लगभग सारा दिन बहुत डिप्रेस्ड रोता रहता था। और घर पे ऐसा माहौल बन गया था कि सिर्फ मैं नहीं पूरी फैमिली डिप्रेस हो गई थी। फिर कुछ मेहनत जुटा के पापा ने मेरे मामा जी से, आज भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मामा जी से 30,000 रुपये लिए उधारे कि एक बार हमें दे दो 30,000 रुपीज़। इमेजिन करो कि 30,000 ही नहीं थे तब, तो 2.5 लाख तो बहुत बड़ी बात है। तो वो 30,000 लेके फिर मैं गुड़गांव गया, वहाँ पे मैंने और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। वहाँ पे मेरी जॉब लगी, इट वाज अ वेरी फर्स्ट जॉब इन माय लाइफ। VLSI में मुझे जॉब मिली क्योंकि मैं बहुत डेडिकेटेड था, मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना और कहीं जाना ही नहीं है। और वहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था कि जब मुझे जॉब ऑफ़र की गई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हम आपको 12,000 रुपये की सैलरी देंगे, क्या आप जॉब करोगे? मैं इतना पैशनेट था उस इंडस्ट्री को लेके, मेरा आंसर ये था अगर आप मुझे कुछ भी ना दोगे मैं फिर भी जॉब करूँ। अगर सो पैशनेट यार मुझे यही करना है यार, मुझे उसको करना ही नहीं है, मुझे VLSI ही करना है। तो वहाँ से मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी। फिर मुझे जॉब में ये रियलाइज़ हुआ कि ये वो लाइफ नहीं है जो मैं हमेशा से जीना चाहता था, क्योंकि सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 2-2 बजे वापस आता था मैं। इट वाज हेक्टिक जॉब फॉर मी। 6 मंथ्स बाद मैंने उसको रिज़ाइन दिया। फाइनली आई स्टार्टेड समथिंग ऑन माई ओन। और उसको क्रैक करने में, जो मैंने खुद शुरू किया था, उसको क्रैक करने में मुझे 3 साल लगे। सो फॉर फर्स्ट 3 years आई वॉज मेकिंग लिटरली नो मनी एट ऑल, वर्किंग एवरी सिंगल डे, 18 घंटे काम करता था। एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड यू वर नॉट डूइंग अ जॉब आल्सो? जॉब नहीं थी उस टाइम, छोटी छोटी गिग्स आती थी। हाँ, छोटी छोटी गिग्स आती थी क्योंकि मैं ब्लॉगिंग शुरू कर चुका था तब।
छोटी छोटी गिग्स आनी शुरू हो गई थी। कोई बंदा बोलता था कि ये लो $20 ले लो, मेरे लिए एक आर्टिकल लिख दो, मैं लिख देता था आर्टिकल। कोई आती थी, उन दिनों मेरा ब्लॉग मैंने बनाना शुरू कर दिया था। ब्लॉगिंग बहुत नई टर्म थी पूरी दुनिया के लिए। हाँ, तो ब्लॉग मैंने बनाया, तो कुछ कंपनीज आती थी, बोलती थी ये लो $25, हमारा एक बैनर लगा दो तुम्हारी वेबसाइट पे। तो वह छोटी छोटी इनकम्स आनी शुरू हो चुकी थी वहाँ से। राइट। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो ये फेज फैमिली ने क्या बोला कि हमने तुम्हें नौकरी करने भेजा था, वो तुमने छोड़ दी, अब तुम कुछ और कर रहे हो और पैसा नहीं कमा रहे हो? उसमें भी इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि लगभग 2 महीने तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं घर वालों को बता दूं कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। हाँ, क्योंकि भाई 30,000 बताया ही नहीं था रुपये मैंने। उन्होंने उधारे लेके शहर भेजा था। यस, तो उनको मैंने 2 महीने तक तो बताया ही नहीं कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। फिर थोड़ी सी हिम्मत करके, हिम्मत भी क्या करके, सिचुएशन ऐसी हो गई थी दिल्ली में रहते रहते कि किराया नहीं भरा जा रहा था मेरे से, मेरे रूम का। तो फिर मैंने पापा को बताया एक दिन, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के, कि जॉब छोड़ दिया मैंने और मैं किराए का मकान पे रहता हूँ, किराया मैं भर नहीं पा रहा हूँ। तो पापा बोले वापिस आ जा बस। हाँ। अपना सामान उठा और वापिस आ जा घर पे। हाँ। तो फिर घर वापिस आया, मेहनत करना शुरू किया। पापा फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके गुस्सा ज़रूर होते थे कि जॉब छोड़ दी तूने, मतलब उधार का पैसा लेके तेरे को भेजा था, और जो जॉब तू करना चाहता था तुझे मिल भी गई, फिर भी तूने छोड़ दी। बट मदर कहीं ना कहीं सपोर्टिव थे। वो पापा को हमेशा ही बोलते थे कि ये जो कर रहा है ना, इसको करने दो, ये अच्छा ही करेगा कुछ ना कुछ। वो होता है ना मदर्स को एक अलग से कुछ। आई थिंक ये सिमिलर मेरे साथ भी रहा है हमेशा। लाइक मेरे भी ज़िंदगी के 4-5 साल ऐसे थे जब पंगा लिया और कुछ नहीं कमाया। हाँ। बट हमारे घर में बाय गॉड्स ग्रेस देयर वाज नो फाइनेंशियल इश्यूज, इट वाज वेरी गुड। बट स्टिल फादर्स थिंक लाइक कि भाई अपने पैरों पे जितना जल्दी हो सकता है खड़े हो जाओ, जल्दी, हाँ, मेक योर ओन मनी। करेक्ट। ओके। तो फिर बस मम्मी ने सपोर्ट किया, धीरे धीरे चीज़ें 2-3 साल बाद चीज़ें बनना सो शुरू ये हुई। जो 3 साल बिजनेस था, ये आपका पूरा एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग में ही था या ये कुछ और मैं था? एफिलिएट मार्केटिंग टर्म का शायद मुझे तब नहीं पता था। ब्लॉगिंग किया करता था मैं, कंटेंट लिखता था, खुद का कंटेंट लिखता था, या मेरा कंटेंट कुछ लोगों को अच्छा लगता था तो वो कंपनीज मेरे पास आती थी कि हमारा भी आर्टिकल लिख दो। उन दिनों में तो $5 का आर्टिकल लिखते थे, $10 का आर्टिकल होता था, तो एक आर्टिकल में लिखता था, $10 मिल जाते थे। सो धीरे धीरे वही सिलसिला चलता रहा। ठीक है जी। तो ये फिर आगे करियर में इसमें ग्रोथ कैसे आया, क्या क्या बढ़ा? इसमें ग्रोथ आया कि मुझे ना एक इवेंट अटेंड करने का मौका मिला 2014 में, एंड द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सक्सेस ज्ञान। ओके। तो उस इवेंट में मैं गया, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में था वो। तो वहाँ पे ना एक स्पीकर आए हुए थे, उनका नाम था पेंग जून। या पेंग जून, यस। तो पेंग जून वाज ऑन स्टेज। तो उन्होंने ना स्टेज पे खड़े होके अपना जीमेल अकाउंट खोला पूरी ऑडियंस के सामने, एंड इट वाज लाइक टिक 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 मैसेज आ रहे हैं, $49 कमीशन, $60 कमीशन, $67 कमीशन। उसने ना कुछ देर वो खोल के रखा स्क्रीन पे, एंड द कमीशन वाज कमिंग इन। मतलब जितनी देर वो स्टेज पे था, लगभग आधा घंटा, वो कम से कम $1,500 कमा के नीचे उतरा, एंड ही वाज ऑन द स्टेज। आंख बंद करके नोटिस करें, नोटों की बारिश हो रही है। बारिश ही थी सीरियसली। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं काम नहीं कर रहा और पैसा आ रहा है। तब फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, एफिलिएट मार्केटिंग को। धीरे धीरे फिर मैं 2014 में ये इवेंट हुआ था जो सक्सेस ज्ञान का इवेंट था। 2014 में ही मुझे एक मौका मिला, एक कंपनी का मेरे पास मैसेज आता है कि कुलवंत, वी आर इंस्पायर्ड बाय योर कंटेंट एंड वी वांट टू सेंड यू टू थाईलैंड, वी विल स्पॉन्सर योर ट्रिप, आना जाना रहना खाना पीना सब हम स्पॉन्सर करेंगे, और तुझे सिर्फ उस इवेंट की कवरेज करके आनी है। ठीक है। पहले तो मुझे लगा यार स्कैम हो सकता है यार, पता नहीं क्या है यार, मतलब गुलाबी थाईलैंड और भेज भी थाईलैंड रहे हैं, क्या है ये। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर जब मैंने उनको बोला ठीक है यस, मैंने भेज दिया, ठीक है यस आई विल डू इट फॉर यू, तो उनका 2-3 दिन बाद फ़्लाइट की टिकट्स भी आ गए और होटल का सारा उन्होंने भेज दिया कि इस होटल में तूने जाके रुकना है। मेरे तो वाह यार, दिस इज़ रियल। तो मैं वहाँ से फिर फ़्लाइट में बैठा, वहाँ पे गया, और वहाँ पे मैं एक स्पीकर से मिला, ही वॉज अनदर स्पीकर, और उनसे जब मैं मिला ना, तब मेरी जो थिंकिंग की बाउंड्रीज थी ना, वो इतनी एक्सपेंड हो गई कि उसके बाद मैं एक अलग इंसान बन चुका था। उनसे मैंने पर्सनली बात की दैट हाउ मच मनी आर यू मेकिंग। द नंबर ही टोल्ड मी 2004 में, वो आज भी मुझे हजम नहीं होता कि पता नहीं सच बताया था बंदे ने या नहीं बताया था। ही टोल्ड मी एवरी सिंगल डे आई एम मेकिंग $30,000। 2014 में 30,000 लाइक आज की डेट में भी लाइक अराउंड 22-23 लाख रुपए हर रोज। वाओ।
एंड वहाँ पे मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस बंदे से। फिर मैंने उसको पर्सनली फॉलो करना शुरू किया, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो सच ही बोल रहा था, बिकॉज ही वॉज द टॉप प्लेयर इन द इंडस्ट्री। वहाँ कन्विक्शन हुई कि यार ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो धीरे धीरे मैंने फिर एफिलिएट सीखना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आए थे कुछ $200-250, फिर एक महीने $940 आए, फिर $1100 आए नेक्स्ट मंथ। वो सिलसिला ऐसा चला कि फिर तो $10,000 महीना, $15,000 महीना, $12,000 महीना। 2015 में 15 दैट मच मनी आई वाज मेकिंग एवरी सिंगल मंथ, $15,000 अ मंथ। लाइक 4 to 10 लाख रुपीज समवेयर इन बिटवीन पर उस मंथ। टाइम हाँ 50 और रुपए तब आप होता कहाँ था। पे थे? तब मैं फतेहाबाद था, अपना तब आप बेसिक घर में ही थे, मतलब ऐसे उसी गांव में थे उसी घर में, जहाँ पे खर्चा कोई नहीं है हाँ, ऑलमोस्ट। और हाँ एग्जैक्टली वहाँ खर्चा कुछ नहीं था। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को घर बना के दिया। अरे वाह काफ़ी मतलब माँ बाप को ऐसा लगा कभी तू क्या स्कैम कर रहा है, इतना पैसा हाँ, खर्च नहीं कर रहा है? हाँ, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो शायद उनको लगता भी होगा कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, बट मेरे एथिक्स कुछ ऐसे थे। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलता था कि मैं चाहे दुनिया से 4 पैसे कम कमाऊंगा, बट मैं किसी का हक नहीं मारूंगा और कुछ गलत नहीं करूंगा। ये मेरे एथिक्स हैं, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे उन्होंने मेरे से भी 10-10 गुना ज़्यादा पैसा कमाया, बिकॉज दे वर इनटू द डिफरेंट इंडस्ट्री विच वर नॉन एथिकल। करेक्ट। मुझे ये था मुझे ये करना ही नहीं है यार। क्योंकि देखो आप गलत कामों से 1000 दिन बच सकते हो, करते जाओ आप, करते जाओ 1000 डे नो मन इज कैचिंग यू। जिस दिन कोई एक पकड़ेगा ना, एक पकड़ेगा वो yes, पिछले 1000 सब खत्म वो हो पिछला जो भी आपने मेहनत की, नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, वो सिर्फ एक दिन में एवरीथिंग वुड बी डेड। सो ये जो आपका कंटेंट था, ये जो ब्लॉग्स थे, ये लाइक ये अपनी पर्सनल वेबसाइट्स आपने बनाई थी उस पे थे जी, या कहीं और थे? ये kulwantnagi.com उन दिनों में अच्छा, मैंने तो किया था। और क्या निश में आप कंटेंट लिखते थे उस टाइम? ये भी बहुत फनी है कि मैं लोगों को ये सिखाता था ब्लॉगिंग कैसे करनी है। क्योंकि उन दिनों में खुद ब्लॉगिंग सीख रहा था। हाँ, तो आप मैं साथ जो भी में सीखता आपने था वही लिखना वो स्टार्ट सिखाता था कि कंटेंट कैसे यार लिखना ये है। कितना सिंपल है, और मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, इफ यू आर लर्निंग समथिंग जस्ट शेयर योर जर्नी शेयर योर जर्नी, एंड इट विल गो वायरल। आज भी वही होता है एंड दिस इज रेलेवेंट राइट, क्योंकि करेक्ट जैसे आपका ये ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ, मेरा 2019 में लिंक्डइन से स्टार्ट हुआ। जी। सो मुझे जब फर्स्ट टाइम एक ब्रांड ने अप्रोच किया कि ना ये एक पोस्ट है, बस ये कॉपी पेस्ट करना है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ। आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट राइट। एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझसे नंबर्स मांगे, कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं, सो इट वाज गुड एंड दे सेंड मी सम 7500 रुपीज। मैंने कहा इस चीज़ का पैसा मिलता है? मैंने कहा ये तो मैं रोज कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ रोज पोस्ट करा। आई लिटरली कुछ मंथली कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कहते नहीं सौरभ ऐसे नहीं होता, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, हम कभी कभी कैंपेन्स करते हैं एंड ऑल। तो फिर मैं उसमें घुस गया एंड दैट वाज माय फर्स्ट बिगेस्ट क्लाइंट। वी डिड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन फॉर देम 2021 में। सो दिस थिंग हैज बीन लाइक क्रेजी फॉर मी आल्सो, सेम लाइक मीटिंग ग्रेट पीपल हैव ओपन्ड द बाउंड्रीज कि भाई कुछ बेटर हो सकता है जो भी कर रहे हो ना, और नौकरी ही एक तरीका नहीं है जी। and you can go completely out of your way to do something. Correct. And sharing what you are doing right now is the best content. कोई स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल बस शेयर करते जाओ, शेयर करते रहो। मैं यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहूँगा। सुबह मेरी एक कॉल चल रही थी, मेरे एक फ्रेंड हैं, ही इज़ इन कनाडा राइट नाउ, हिज नेम इज़ दानिश वाधवा। सो उन्होंने अभी रिसेंटली ना एक मास्टरमाइंड ज्वाइन किया है। मास्टरमाइंड इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल वेयर देर आर पीपल हु आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी। तो उन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया, कुलवंत मैं एक ऐसे मास्टरमाइंड का ग्रुप बनाऊँ, और ये मास्टरमाइंड जो होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं, $30,000 $35,000 इनकी सब्सक्रिप्शन होती है, $50,000। सो ही पेड दैट मच मनी, $50,000 टू बी ए पार्ट ऑफ दैट मास्टरमाइंड। और सुबह मुझे फ़ोन करके बता रहा है, कुलवंत मैं एक ऐसे बंदे से मिल के आया हूँ, साल का $150 मिलियन कमा रहा है। हाँ, एंड हिज टीम इज़ जस्ट 5 people। वाओ, दैट वाज द क्रेजी पार्ट। मैं आजकल इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये जो दुनिया है ना जहाँ पे आप कंटेंट को इतना स्केल कर सकते हो, करेक्ट, कि आपको बिलियन डॉलर कंपनी, वो 100-200 लोगों की टीम, फैंसी ऑफिस ज़रूरत ही नहीं है। और अभी एआई के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लाइक सैम ऑल्टमैन सेज, जो ChatGPT फाउंडर है, ही सेज दैट टुडे यू विल बी बिल्डिंग $1 billion कंपनीज विद वन मैन सिंगल पर्सन एंड एआई सिस्टम। ये हो रहा है ऑलरेडी, हो रहा है। लाइक 100-150 मिलियन तक तुम लोगों को देख ही पा रहे हैं राइट, ठीक है। लाइक मिस्टर बीस्ट कंटेंट के बेस पे नेटफ्लिक्स से बड़ा प्रोडक्शन स्टूडियो उसके पास है, इज अ यूट्यूबर, बिलियनर यूट्यूबर, एंड 12 साल हुए हैं। स्टार्टेड इन 2012 ओनली, 12 से 13 साल। सो अगर मैं एक कॉलेज जर्नी देखूं, 22 साल हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज,
फिर हम 20 साल नौकरी करके भी इतना पैसा तो नहीं कमा सकते. उसका 1% भी नहीं शायद. Awesome. So this was a great piece of your personal journey. I think a lot of emotional turmoil also, जी. right? To seeing your father that sick के खून की उल्टियाँ हो रही हो, बहुत painful हो सकता है. It was bad. And I think मैंने उतना नहीं देखा, but my father is also entrepreneur from nature, तो risk taking capacity उनकी बहुत ही ज़्यादा है. होता है. So he has lost like crores in one deals. तो मैंने उनकी तबीयत खराब देखी है. Like जब होता है ना तो एंड वो स्ट्रेस क्या होता है, वो खराब एनवायरनमेंट, वो बहुत पेनफुल होता है. लाइक स्पेशली जब आपकी उम्मीद टूटती है ना, वो बड़ी पेनफुल होती है कि यार. और सोचो जिसको एडमिशन नहीं मिलता यूएस में, उसकी तो जिसको मिल गया और वो ना जा पाए अपने सर्कमस्टेंसेस. खुद के लिए शायद वो पेन कहीं ना कहीं हम सह भी सकते हैं. बच्चों के मामले में जब बात आ जाती है ना, तो वो बहुत मुश्किल है. तो सो लाइक जब गुस्सा आता है ऐसी सिचुएशंस पे, तो यूजुअली पीपल टेक डिसीजंस. जी. आपने क्या डिसीजन लिया? मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि कभी पैसे के पीछे पूरी फैमिली परेशान ना हो. और मैंने कमाया भी, पूरा घर बना के दिया, गाड़ियां हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर. सो पेरेंट्स अभी फतेहाबाद में रहते हैं? पेरेंट्स फतेहाबाद में. एंड दे आर हैप्पी, सुपर हैप्पी. ऑसम, कूल. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट व्हिच इज कॉल्ड सिस्टम्स एंड स्केलेबिलिटी. ये हमारा कोर है, इस पे हम थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे, ऑलमोस्ट लगा लो 20-25 मिनट. मेरा अपना पर्पस भी है एंड मुझे ऐसा लगता है दैट एक बड़ा बिजनेस में सिस्टम्स नहीं होते हैं. एक छोटे बिजनेस में जब सिस्टम्स होते हैं तो वो बड़ा बनता है धीरे धीरे करके. राइट. सो आपका जो बिजनेस है अभी, व्हाट आर यू बिल्डिंग करेंटली? लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एनीवे. राइट. सो मैं आपको ही बोलूँगा कि आप ही बताओ कि आप अभी क्या बिल्ड कर रहे हो, एंड फिर उसमें आप लोग अभी क्या बेसिक सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो, कितनी बड़ी आपकी टीम है, एंड वो सब कैसे मैनेज होता है. जी. So right now I'm more into AI images and videos. क्योंकि जब मैंने इसको रिसर्च करना शुरू किया, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ब्लॉगिंग से AI की तरफ मैं कैसे आया. तो इसके पीछे रीज़न ये रहा कि 2023 में कुछ ऐसा बड़ा हुआ कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई. What was that? That was AI. ठीक है. AI का अडॉप्टेशन इतना ज़्यादा हुआ कि हर बंदे की रीच में AI आ चुका था. राइट. अफोर्डेबल हो चुका था, सभी को पावर पता चल चुकी थी AI की, जिसकी वजह से कंटेंट प्रोडक्शन मास स्केल पे होने लग गया. यस. और जब कंटेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगा, तो गूगल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि कौन सा कंटेंट AI है और कौन सा ह्यूमन रिटन है. सो गूगल का एल्गोरिथम 2023 में कंफ्यूज हुआ, सितंबर 2023 में. वहाँ से उन्होंने एक अपडेट निकाली गूगल ने. गूगल अपने एल्गोरिथम को हर 2-3 महीने बाद अपडेट करता है. सो इट वाज अपडेट इन 2023 जहाँ पे जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट थी उनको गूगल ने डाउन कर दिया. और उस चक्कर में बहुत बड़ी मतलब $1 बिलियन कंपनी जो थी वो भी इम्पैक्ट हुई, जिसमें से Forbes.com भी एक थी. Forbes का 80% ट्रैफिक ड्रॉप हो गया था एकदम से. ऐसे ग्राफ था उनका बिल्कुल नीचे की तरफ. तो वहाँ से जब मैंने देखा कि नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टू AI, तो मुझे भी अब स्विच करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग तो डेड हो चुका था उस टाइम. रैंकिंग गूगल नहीं दे रहा है. रैंकिंग नहीं दे रहा तो फिर पैसा कैसे आएगा, क्योंकि मेरा तो सारा बिजनेस रैंकिंग पे डिपेंडेंट था. हमें थोड़ा सा ये भी बताओ, जिन लोगों को शायद अभी नहीं भी पता होगा, ये ब्लॉगिंग में ये पैसा कैसे बनता है? लाइक प्रोडक्ट कौन सा आता है, ये प्रोसेस क्या है, लाइक स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे होता है? तो ब्लॉगिंग में बेसिकली ऐसा होता था कि हम मल्टीपल निशेस को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते थे. जैसे मेरी पेरेंटिंग पे वेबसाइट्स थी, हमारी डॉग्स पे वेबसाइट्स थी, हमारी कैट्स पे वेबसाइट थी, कार की स्ट्रॉलर्स, कार की जो सीट्स होती हैं, कार की सीट पे हमारी वेबसाइट थी. हेलमेट्स की हमारी एक वेबसाइट थी. सो आई हैड मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन स्मॉल टॉपिक्स. तो उसमें हम करते क्या थे, वी यूज टू राइट आर्टिकल्स कि एक बेस्ट हेलमेट कौन सा है, एक ब्लूटूथ हेलमेट कौन सा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उसका बेस्ट हेलमेट कौन सा है, शॉर्ट ड्राइव के लिए कौन सा बेस्ट है, लाइक डिफरेंट आर्टिकल्स. सो प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल्स होते थे. तो उनको हम लिखते थे, उनको हम गूगल में रैंक करते थे. एंड वंस समवन इज सर्चिंग लेट्स से बेस्ट ब्लूटूथ हेलमेट फॉर हाइकिंग, तो वो हमारी वेबसाइट तक आते थे. और जब वो हेलमेट्स को परचेज करते थे
देन वी यूज टू अर्न कमीशन। तो वहाँ So से हमें basically- एफिलिएट कमीशन मिलता था। अपने पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ कोई नहीं है, हम product सिर्फ नहीं, कंटेंट लिख रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट content। किसी और का है, उसका Correct। हमने लिंक डाला हुआ है, जी, वो लिंक ट्रेसेबल है कि आपके ब्लॉग से ही वो परचेज हुआ है। करेक्ट। सो कंपनी प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, सर्विस आफ्टर सब सर्विस कुछ सब उनका, मैनेज सब करेगी, कुछ उनका। एंड एज सून एज द सेल हैपेंस यू गेट योर कमीशन। करेक्ट, करेक्ट। ऑसम। एंड जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतने ज़्यादा हेलमेट्स बिकेंगे, उतना ज़्यादा कमीशन आएगा। ट्रू, ट्रू। और इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी कि अमेज़न जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी है, अमेज़न की जो कुकीज़ होती थी वो होती थी 24 आवर्स के लिए वैलिडिटी होती थी उनकी। ओके। कि एक बार आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके कोई अगर अमेज़न की वेबसाइट पर पहुंच गया है, हाँ। तो अगले 24 घंटे में वो जो कुछ भी खरीदेगा, यू विल गेट द कमीशन ऑफ दैट। ओके, अगर वो उस प्रोडक्ट के अलावा कुछ और भी खरीदेगा तो भी? नेक्स्ट 24 अरे आवर्स वाह। इफ ही बाइज एनी डैम प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट, यू गेट द कमीशन। ओके, दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी, ये नहीं तो पता था। उसमें मज़ा आता था हमें कि हमने भेजा तो बंदे को एक $5 के प्रोडक्ट के लिंक से साइट पे भेज दिया, हाँ। बट उसने वेबसाइट पे जाके $200 की या $5000 की भी कुछ कस्टमर्स ने Yes, खरीदी। yes, हो सकता जैसे है। किसी ने मैकबुक खरीद लिया Correct, $3000 का, yes। तो मेरे पास आ गया कमीशन उसका 5%, 10% जो भी होता था उस सो टाइम। नॉर्मली कितना एवरेज होता था ये कमीशन परसेंटेज में? जब शुरू किया था हमने तब 10% कमीशन था, धीरे धीरे करते करते अभी आज के टाइम में 2% के आसपास आ चुका है। सो अभी भी वो ब्लॉगिंग वाला थोड़ा बहुत चलता है या बिल्कुल डेड नहीं, है? अभी डेड है, क्योंकि गूगल रैंकिंग ही नहीं दे रहा। गूगल कह रहा है अगर आप एफिलिएट कुछ प्रमोट कर रहे हो, आई विल नॉट गिव यू रैंकिंग्स। सो अगर ये ब्लॉगिंग में नहीं कर सकते हैं तो अभी इस चीज़ को करने का और कोई तरीका कंटेंट है? से कर सकते हैं। Content नाउ द अल्टीमेट गेम इज content. कंटेंट। यू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ऑल योर प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे अपनी ऑडियंस बिल्ड करो। वंस द ऑडियंस इज देयर, देन यू स्टार्ट रिकमेंडिंग द सॉफ्टवेयर। सो अगर आप 1-2 साल थोड़ा पेशेंस रख के अपना कंटेंट साइड हसल की तरह बिल्ड कर लो, करेक्ट। एंड देन यू कैन बिल्ड दैट, यू कैन एक्चुअली अर्न $10,000-15,000 अ मंथ काइंड ऑफ अ Easily, थिंग। अभी भी बना सकते हैं? बिल्कुल, बड़े आराम से बना Awesome, सकते ठीक है, मैं आपके साथ सीखूंगा और हम बनाएंगे। जी। ठीक है, दिस लुक्स वेरी एक्साइटिंग नाउ। Yes, ठीक है yes, ना? this is- एंड अब कोई सिखाने वाला बिल्कुल साथ में हो तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? करेक्ट। ठीक है, कूल। सो आते हैं वापस AI इमेज जनरेशन एंड वीडियो जी, एंड योर करंट बिजनेस एंड सिस्टम्स। जी। तो AI इमेजेस में अभी राइट नाउ, AI इमेजेस में मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि जब मैंने ये स्टडी किया ना कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना कोई बिजनेस आज के टाइम में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, है ना। शायद अगर हम बात करें, शायद ईमेल मार्केटिंग के बिना एक बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, शायद व्हाट्सएप ऑटोमेशन के बिना भी कर सकता है ना। शायद अगर वो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं है तो भी मे बी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बिना सर्वाइवल ही नहीं है, दैट इज़ इमेजेस, हाँ, है ना। हर बिजनेस को, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, इमेजेस तो चाहिए ही चाहिए। मार्केटिंग के लिए, प्रमोशनल के लिए, बैनर्स के लिए, पैम्फलेट्स के लिए, फ्लायर्स के लिए, लाइक एवरीवेयर यू नीड इमेजेस। यस। तो वहाँ से मुझे समझ आया दिस इज समथिंग विच आई कैन डू, एंड दिस इज समथिंग विच इज टारगेटिंग द लार्जर ऑडियंस। यहाँ पे मेरा ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है। तो फिर मैंने मास्टरी की उनकी, AI इमेजेस की पहले मास्टरी की, उसके बाद मैंने AI वीडियोस के भी मास्टरी कर रहा हूँ, एंड इट्स एन एक्साइटिंग जर्नी। तो आपने कोई कोर्स लेके सीखा या खुद रिसर्च किया? मैं खुद रिसर्च करता हूँ, खुद। आप ये थोड़ा सा डिटेल बताओ, लाइक आपने पहले ब्लॉगिंग में भी ऐसे रिसर्च किया, फ्रॉम इंजीनियर टू अ ब्लॉगर, करेक्ट। फिर आपने यहाँ रिसर्च किया दोबारा से, एंड आई थिंक जब हम एज अ फर्स्ट टाइमर रिसर्च करते हैं तब तो समझ में आता है। करेक्ट। 10 साल बाद सेम पेशेंस होना इतना पैसा कमा लेने के बाद। जी, राइट। एंड आई थिंक हमने एक चीज़ बीच में मिस कर दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी, 2013-14 में जब आपको वो इवेंट मिला सक्सेस ज्ञान का, जी, तब आपने वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट की, करेक्ट। बट आप फिर सक्सेस ज्ञान के स्पीकर भी बने उसी जी, स्टेज पे। बिल्कुल। वो बताओ कैसे? मुझे मौका मिला सक्सेस ज्ञान के साथ काम करने का भी। सो 2018 आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम द ओनर ऑफ सक्सेस ज्ञान, मिस्टर सुरेन। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुलवंत, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, वुड यू लव टू कोलैबोरेट विद अस, दैट वी कैन डू समथिंग टुगेदर। तो मेरे लिए तो ये मतलब एक सपने जैसा था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं ऐसे पीछे लास्ट बेंच पे बैठ के सुनने गया था कभी किसी को, है ना। और उस स्टेज पे मुझे चढ़ने का मौका मिलेगा। मैंने बोला ठीक है, लेट्स डू इट। एंड देन हमने 9 लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें सिद्धार्थ राजशेखर, मिस्टर अभी आर्या, सौरभ जैन, दीपक कनकराजू, या इंडिया के जो भी टॉप प्लेयर्स थे, हम लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया। वी नेम्ड इट डिजिटल मास्टर्स कॉन्फ्रेंस, ओके, पावर्ड बाय सक्सेस ज्ञान। तो वहाँ से हमने उस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमने मुंबई में की, जहाँ पे 1100 लोग थे उस रूम के अंदर। ओके। फिर हम कोलकाता गए, हैदराबाद गए, पुणे गए, मतलब दिल्ली में गए, डिफरेंट सिटीज़ में हमने 5 या 6 इवेंट्स सक्सेस ज्ञान के साथ किए एज ए स्पीकर। इट वाज ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड लेटर जब कोविड हुआ 2020 में, फिर हमने
ऑफलाइन से स्विच करते हुए हम ऑनलाइन पे आए, क्योंकि ऑफलाइन तो हो नहीं रहे थे हो नहीं उन दिनों में सकता था, events। हाँ। तो हम ऑनलाइन आए और हमने वेबिनार फॉर्मेट में उन इवेंट्स को करना शुरू किया। मुझे याद है एक वेबिनार किया था सक्सेस ज्ञान में जिसमें 22,000 लोग थे। वेबिनार में, हाँ। वाह। तो वहाँ मैं पे जस्ट इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उसकी कमेंट्री कैसी चल रही होगी। एग्जैक्टली, तो आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स टॉकिंग टू दोस 22,000 पीपल। तो वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिली, काफ़ी कोलैबोरेशंस हुई। उसके बाद काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे सक्सेस ज्ञान में देखा, दे बिकेम माई स्टूडेंट्स। तो वहाँ से चीज़ें बहुत चेंज होना शुरू हुई। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। Now your current business is hardcore into AI image AI generation images and and video video generation, right? Correct. And आप clients के लिए ये बनाते भी हो जी, और बिल्कुल। सिखाते भी हो, करेक्ट। ठीक है? So tell us something about the AI growth school. सो AI ग्रोथ स्कूल मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। इट्स लास्ट ईयर लॉन्च प्रोजेक्ट, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ ओनली फॉर, एज आई टोल्ड, AI इमेजेस एंड वीडियोस। तो पहले मैंने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए थे जिसमें मैंने सिर्फ इमेजेस के बारे में बात की, क्योंकि दैट इज़ द बेस। जब तक इमेज बनाना नहीं आता आप वीडियो की बात नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले AI से इमेजेस बनाना सिखाया। और अभी राइट नाउ देर आर 2200 स्टूडेंट्स इन माई कम्युनिटी। और अभी रिसेंटली कल रात को ही मैंने अपना नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, वेयर आई अनाउंस्ड कि अब मैं आपको वीडियोस भी सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। सो नाउ आई विल बी जंपिंग इनटू द वीडियोस। आई विल बी टीचिंग देम हाउ टू क्रिएट द सिनेमैटिक वीडियोस, किस तरीके से आपको कमर्शियल्स बनाने हैं, या AI स्टोरीज बनानी है, या AI फिल्म मेकिंग करनी है। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये रहने वाली है कि आई एम ऑल्सो लर्निंग इन दिस प्रोसेस। Same, right? So what you learn, you immediately start sharing and start building over it, right? करेक्ट करेक्ट। Because then that's when you get, if you get questions from 2200 students, जी, like how much research you will need to do every Correct, day, हाँ, and हाँ, उतना कोई नहीं करता है, नहीं करता। हाँ, है ना? तो बेसिकली आप वो हो जो रिसर्च कर करके सिखा रहे हो, सिखा रहा हूँ। हाँ, और उस बिल्कुल। प्रोसेस में खुद बहुत ज़्यादा सीख भी रहे हो। एग्जैक्टली, मैं खुद सीखूंगा इस प्रोसेस में। बहुत सारे टूल्स मुझे बाय करने पड़ेंगे, बहुत सारे टूल्स को ट्राई आउट करना पड़ेगा, कौन सा out बेस्ट करना है, कौन सा पड़ेगा, yes. वर्स्ट है, कौन सा अच्छा आउटपुट देता है। हालांकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ काफ़ी सारा वर्क। तो बट हाँ, इस जर्नी में मुझे मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि खुद सीखूंगा, खुद सिखाऊंगा। मे भी उसमें गलतियाँ भी होंगी, आइटरेट करता जाऊँगा, इम्प्रूव करता जाऊँगा। सो लेट्स से कुलवंत जी, अगर किसी को स्टार्ट करना हो अपना कोचिंग बिजनेस या कोई भी डिजिटल बिजनेस, तो व्हाट आर द बेसिक एसेट्स दे नीड टू क्रिएट, एंड उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? ओके, सो बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड में आने के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ डोमेन नेम। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना ब्रांड का एक नाम चाहिए, एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद .com। ओके, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अपना ब्रांड नेम ढूंढने जाते हैं इंटरनेट पे और हमें मिलता नहीं है। .com तो आज के टाइम में अवेलेबल ही नहीं है। तो आप अगर अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्पेंड सम टाइम टू फाइंड अ ब्रांडेबल, अ डिसेंट डोमेन नेम। जैसे मेरे केस में AIgrowthschool.com, बट इस डोमेन में एक छोटा सा ट्विस्ट है कि मुझे SCHOOL स्कूल वो वाला नहीं मिला, तो मैंने SKOOL उसमें ऐड कर दिया, एंड देन आई गॉट दिस पर्टिकुलर ब्रांड नेम। तो सबसे पहले आपको डोमेन नेम लेना है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप सिखाना क्या चाहते हैं। अगर हम कोचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इस बात की तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि सिखाना क्या है, सिखाना क्या, राइट? और आज के टाइम में तो हमारे पास एक ऐसी सुपर पावर आ चुकी है कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो। आप ChatGPT पे जाओ, उसको बताओ कि दीज आर द थिंग्स विच आई लव टू डू, सजेस्ट मी द आइडियाज़ अराउंड दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट आई कैन टीच टू द वर्ल्ड एंड मेक सम मनी। तो वो अपने आप आपको आइडियाज़ बता देगा, आपको ड्रिल डाउन करके बता देगा ये चीज़ें की जा सकती हैं। फिर फर्दर आप उससे क्वेश्चनिंग करो। लेट्स से उसने 4 आइडियाज़ रिकमेंड कर दिए, अब उसमें से एक आइडिया पिक करके उसको बोलो कि एम्पलीफाई दिस आइडिया फॉर मी एंड लेट मी नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अंडर दिस पर्टिकुलर आइडिया एंड हाउ कैन आई मेक मनी। तो वो आपको पूरी की पूरी लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है। सो वंस दैट इज़ डन, जब आपके पास सारा का सारा डाटा आ जाएगा, अब आपको चाहिए एक लैंडिंग पेज जहाँ पे सारा आप डिस्प्ले करोगे कि मैं क्या सिखा सकता हूँ, सिखा सकती हूँ। ठीक है, तो उस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए यू माइट नीड अ लैंडिंग पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर। ठीक है, या तो जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ swipepages.com करके एक प्लेटफॉर्म है, या अभी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म रिसेंटली मार्केट में आया है, आई थिंक 3 या 4 साल पहले, बांग्लादेश के एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर ने उसको लॉन्च किया है। इट्स नेम इज़ Dorik DORIK.com। ओके, बहुत अफोर्डेबल है, 400-500 रुपये शायद महीने का उसका प्लेटफॉर्म है, एंड इट कैन क्रिएट ब्यूटिफुल लैंडिंग पेजेस। ओके,
ठीक है, तो आप उसको यूज़ करके लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं. वंस द लैंडिंग पेज इज़ देयर, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मार्केटिंग. और उसकी तो आई थिंक कोई लिमिट ही नहीं है कि किस तरीके का. तो बेसिक अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो $10 का डोमेन चाहिए जो कि साल की सब्सक्रिप्शन होती है. और अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, लैंडिंग पेज जहां पे बनेगा 3 या 4 हज़ार रुपये साल का उसका, तो लगभग 5,000 रुपीज़ में आप अपने आप को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं एन ईयर. बेसिक सेटअप आपका हो जाएगा 5-7 हज़ार रुपये में. जी फिर जैसे मान लो हमें मेटा एड्स चलानी है, प्रोग्राम कंटेंट बनाना है, जी. एंड उसके लिए 1-2-3 लोगों की छोटी सी टीम चाहिए हेल्प करने के लिए. स्टार्टिंग में आई थिंक टीम नहीं चाहिए. स्टार्टिंग में टीम भी नहीं चाहिए, आपको अकेले शायद कर अभी सकते हो. विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास अभी भी कोई टीम नहीं है. रियली आई डोंट हैव एनीवन इन माय टीम. आई वर्क अलोन. वाओ. तो लेट्स से 1 साल का भी मान लो प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर लिया हमने, लैंडिंग पेज भी बना लिया, राइट. अब हमें इसके बाद 1 साल का जो मार्केटिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना वो एड्स बजट और ये सब चीज़ें लग के चलना चाहिए? इसके लिए ना स्टार्टिंग में शायद एड्स करने की भी ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. पहले एक बार दुनिया को दिखाओ कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ. ठीक है. सो अल्टीमेटली यू नीड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट. बेसिकली उसमें आपको 1-2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. एक तो गुड लाइटिंग, ठीक है, अच्छी सी लाइटिंग होनी चाहिए. सेकेंडली अ गुड माइक लाइक वी आर यूजिंग दिस राइट नाउ. थर्डली कैमरा की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है. फ़ोन आजकल इतने हाई एंड फ़ोन्स आ चुके हैं. अच्छा फ़ोन कोई भी आप लो, उस पर रिकॉर्डिंग करो. एंड 1 ट्राईपॉड. उसके अलावा आई थिंक और कुछ नहीं चाहिए. तो ये अगर फ़ोन आज के टाइम में हर किसी की जेब में है, सिर्फ माइक, लाइट और ट्राईपॉड, ये 3 चीज़ों की इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. और मेरे ख्याल से ये भी 5-7 हज़ार रुपये की रेंज में सारी चीज़ें आ जाएंगी. ठीक है. ज़्यादा नहीं तो शायद 10,000 में आ जाएंगी. इससे ज़्यादा तो महंगा नहीं होगा. सो विद इन 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर क्रिएटर जर्नी एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. स्टार्ट शेयरिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. डू योर रिसर्च ऑन ए डेली बेसिस. आपकी रिसर्च नहीं रुकनी चाहिए. एवरी डे यू गेट, व्हेनेवर यू गेट अप, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ और रिसर्च करना शुरू कर दो. वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव यू आस्क, एंड दिस इज हाउ यू डू इट. सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा है जिसके पास फ़ोन भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, जी, सब कुछ नया खरीदना है, जी, तो भी 1,00,000-1,25,000 रुपये लगेगा. लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, डोमेन नेम, मार्केटिंग स्पेंड, ये सब अगर करना. सारा कैलकुलेट अगर लैपटॉप भी लगा दें तो ऑब्वियसली तो 30-40 हज़ार से कम लैपटॉप आता नहीं है ना. मैं कहता हूँ मैकबुक ले रहे हैं सब लोग, मैकबुक और आईफोन भी ले रहे हैं, तो भी 1.5 लाख में 1-1.5 लाख आपका फुल सेटअप आ गया, आपकी दुकान खुल गई डिजिटल. करेक्ट. 1.5 लाख में आपकी डिजिटल दुकान खुल गई. कोई दुकान नहीं. 1.5 लाख में कोई दुकान नहीं खुलती है, राइट. हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, मिनिमम शोरूम 2-2.5 करोड़ का है. ठीक है. एंड रेंट भी 1.5 लाख रुपए महीना है. और ऊपर से सामान भी तो सामान रखोगे वो अलग, इन्वेंट्री अलग, वेरी. एंड हाँ, मैंने वहाँ से 15 लाख रुपए महीना प्रॉफिट कमाते हुए किसी को नहीं देखा. नहीं बनता. हाँ. नहीं बनता, राइट. सो हमारे पास पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो दिस इज कि हमारा 1.25 लाख 1.5 लाख में लेट्स से बिजनेस स्टार्ट. बहुत हाई एंड में, वो बहुत हाई एंड पे लिया है. बहुत हाई एंड में अगर जाएंगे आप छोटा लैपटॉप भी ले सकते हो, सस्ता फोन भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, बट लेट्स से यू गेट द बेस्ट सिस्टम. मैं क्यों बोल रहा हूँ पर्सनली कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर लेंगे तो, बिकॉज आई थिंक जब मैंने नॉर्मल विंडोज लैपटॉप से एप्पल पे शिफ्ट किया था, इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी. बिल्कुल बिल्कुल. वो लाइक वो अलग है. लैपटॉप खोल के ईमेल सेंड करने तक 10 सेकंड लगते हैं. एंड्रॉइड में वो घूमेगा, अभी वो विंडोज में ना टाइम लगाएगा. सो इट वाज लाइक कि अगर मुझे डिजिटल काम करना है ना और मुझे स्पीड से काम करना है, तो आई नीड गुड सिस्टम्स. हाई टेक होना. इट शुड बी सिस्टम. हम सिस्टम डिपेंडेंट है ना अभी, हमारे लिए वो मशीन मैटर करती है. ठीक है ना. सो आई थिंक अब ना थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं रिसर्च में. लाइक लेट्स से आप अभी इमेजेस की बात कर रहे हो. करेक्ट. एंड सो जब आप अनअवेयर हो, देयर इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ अनअवेयर, राइट. आपको इतना पता है कि मैं चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉम्प्ट डालूंगा, इट विल क्रिएट अ इमेज फॉर मी, राइट. अब लेट्स से आपको कुछ आउट ऑफ द ब्लू नया क्रिएट करना है, तो आप रिसर्च कैसे करते हो? रिसर्च के लिए भी मैं एक वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, और ये ना बहुत ही अंडररेटेड वेबसाइट है. इसके बारे में सुना बहुत लोगों ने है, मे भी कुछ लोग इसको शायद यूज़ भी करते होंगे. वेबसाइट का नाम है जी medium.com. आपने सुना है? आप यूज़ करते हैं? हाँ सुना है, मैं यूज़ नहीं करता. मीडियम पे ब्लॉग्स होते हैं. यस. देन स्टार्ट यूजिंग इट. ओके. इट विल चेंज एवरीथिंग अराउंड यू. ओके. इसकी $5 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है. ठीक है. साल का अगर लेते हैं इट्स $50 एन ईयर. ओके. बिलीव मी, इट विल चेंज द वे यू थिंक, द वे यू वर्क, द वे यू ऑपरेट, द वे यू एग्जीक्यूट. क्योंकि medium.com पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है उसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप बाय कर रखी है. ओह ओके.
एंड दोज आर गोल्ड माइन। द क्रीम नॉलेज इज कमिंग ऑन द प्रीमियम साइड। क्रीम, हाँ, और $5 पर मंथ, कुछ नहीं होता, इट्स लाइक हाँ, नथिंग, ठीक सोचना है। भी नहीं है ना, तो $5। 1.25 लाख में पूरे साल का हमने 6,000 रुपये और जोड़ लिया, कोई बात हाँ, नहीं, कोई फर्क correct। नहीं पड़ता। हाँ, ठीक तो है। वहाँ पे आपको ना, आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉलो करो, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, वट एवर यू आर डूइंग, पेरेंटिंग, गिटार लर्निंग, ठीक है। टीचिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट फॉलो दोज पर्टिकुलर कैटेगरीज, और आपको डेली की फीड आने लग जाएगी अपने ईमेल के अंदर ओके। कि जो भी टॉप आर्टिकल्स हैं, टॉप परफॉर्मिंग आर्टिकल्स हैं, ओके। स्टार्ट रीडिंग दोज आर्टिकल्स एवरी सिंग। मैं डेली पढ़ता हूँ, मैं चाहे और कुछ करूँ ना करूँ, मुझे वो आर्टिकल तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। सो यू हैव फॉलोड इमेज जनरेशन, AI, हाँ, AI इमेज AI जनरेशन, वीडियो generative जनरेशन AI, हाँ, आर्टिकल्स। AI तो video। आपने मल्टीपल ऐसे ब्लॉग्स फॉलो किए हुए मीडियम पे जी, आर्टिकल्स? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना टाइम स्पेंड करते हो ये इनको पढ़ने में डेली बेसिस? मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम इट कैन गो टू 1 hour एज वेल, डिपेंड्स ऑन की सो मतलब articles वो कितने बड़े हैं। 1 घंटा डेली आपका एक डिसिप्लिन है कि वो ये मुझे आर्टिकल्स तो पढ़ने हैं, वो आर्टिकल पढ़ने हैं, देखना है and these दुनिया are में क्या written हो by रहा है। some experts who knows more than me. Correct, Maybe they are also on the learning journey, बिल्कुल। but they have experimented something more. So आपको वहाँ से आइडियाज मिल जाते हैं। करेक्ट। और अगर आपने सिर्फ ये एक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इन नेक्स्ट 30 days। आई कैन गारंटी इट, इट्स माई 100% गारंटी। यू डू इट एंड यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इन नेक्स्ट 30 days। एंड आई थिंक ये 1 घंटा सबके पास है, बिकॉज हर कोई डूम स्क्रोलिंग कर रहा है इंस्टाग्राम पे, 1-1.5 घंटा गेम खेल रहा है, फोन में नेटफ्लिक्स देख रहा है। करेक्ट। तो ये टाइम तो सबके पास है। एंड स्पेशली आई एक्चुअली वांट टू टॉक दिस टू ऑल द मैरिड वुमेन दैट कम टू मी, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कभी कभी बच्चों की वजह से करियर छोड़ दिया, 7-8 साल का गैप आ गया, अभी करें क्या पता नहीं। करेक्ट। तो आई थिंक दिस जर्नी इज बेस्ट फॉर देम। जी, 1-1.5 लाख रुपए तो अरेंज वो कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। मतलब एनीवे लैपटॉप फोन सबके पास वो होता तो है, ऑलमोस्ट सभी के ठीक पास है। है ही आज के टाइम। और वो 2 घंटे का रिसर्च टाइम तो बहुत है उनके पास, चाहे आप 6 महीना सिर्फ रिसर्च में लगा लो, कोई करेक्ट दिक्कत नहीं करेक्ट। है। और उसमें ना You एक learn। मजेदार चीज ये होने वाली है कि आपको ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलेगा जो आपने कभी सोचे ही नहीं। हाँ, जहाँ तक आपका माइंड आज तक कभी गया ही नहीं, आपने उस जोन में जाके कभी उस पर्टिकुलर चीज को देखा ही नहीं। जब आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की पर्सपेक्टिव्स देखोगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि दिस इज समथिंग वेरी बिग विच आई कैन स्केल। यस। तो वहाँ मजा आएगा। सो दिस इज व्हाट आई डू, और दिस इज माय लाइक ठीक है। सीक्रेट वेपन टू बी व्हाट आई एम। Okay, this is a very good learning, I think, system, which is a system of a platform plus your own discipline. I think system दोनों जगह से ही होता जी, है। सिस्टम, हाँ ठीक है, so now we can tell Kulwant, like say him as a one-man system, जी, which 100%। is using technology to the core and his own discipline. जी। Cool. And कुछ ऐसे वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल्स आप यूज़ करते हो अभी अपने पूरे सेटअप में, फ्रॉम लैंडिंग पेजेस टू मेटा एड्स टू ब्रिंगिंग इन स्टूडेंट्स, मेंटेनिंग देयर कम्युनिटी, वो क्या सिस्टम्स हैं आपके पास अभी? राइट। तो इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा अभी डिपेंडेंट हो चुका हूँ चैट जीपीटी पे। एक तरफ से तो अगर मैं देखूँ, अगर दूसरे एंगल से मैं देखने को कोशिश करूँ तो शायद ये गलत चीज़ भी है, लेकिन मैं उस एंगल से कभी नहीं देखता, बिकॉज मेरे लिए एक सुपर पावर है ये। इसने मेरी पावर्स को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है कि अभी मेरी डिपेंडेंसी काइंड ऑफ ज़ीरो हो चुकी है ना। पहले मुझे सोचना पड़ता था, जैसे पहले मेरे पास एक कॉपीराइटर थी, वो हर लैंडिंग पेज को लिखने का 25,000 रुपये मेरे से चार्ज करती थी। सो वेन एवर आई वॉज रनिंग एनी एड्स, तो मैं उनके पास जाता था, श्वेता जी मेरे लिए लैंडिंग पेज की कॉपी लिखो। वो 3-4 दिन लेती थी। कुलवंत पहले तो मुझे ये बताओ कि बेचना क्या है। तो मैं उनको पहले पूरा ब्रीफ देता था, डॉक में लिखता था कि ये बेचना है। फिर वो डाटा उनके पास जाता था, फिर वो 3-4 दिन लेती थी, पूरी कॉपी लिखती थी मेरे लिए। फिर वो कॉपी मेरे पास आती थी, फिर मैं पढ़ता था उसको, मैं बोलता था नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, दोबारा। मतलब पूरा एक प्रोसेस था, द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। 10 दिनों का प्रोसेस था वो। मतलब लैंडिंग पेज मेरे तक पहुंचने में 10 दिन लगते थे। बिल्कुल लगते थे। आज वही काम मैं 2 घंटे में कर देता हूँ। चैट जीपीटी को बोलता हूँ ये बेचना है, ये बेचना है मुझे, 25,000 बचते हैं, कितना टाइम बचा, है ना। सो चैट जीपीटी से सारा काम करवाता हूँ, लैंडिंग पेज कॉपी उससे बनवाता हूँ, और जब वो लैंडिंग पेज बन के आ जाता है तो मैं उसको सिर्फ एक लाइन लिखता हूँ, कन्वर्ट दिस लैंडिंग पेज इनटू HTML प्लस टेलविंड CSS, एंटर। लैंडिंग पेज, क्रिएट एन एंटायर लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज इज लाइव। ये सब चैट जीपीटी पे हो जाता है 100% विद ऑल द एलिमेंट्स, प्रॉपर प्लेसमेंट, जहाँ पे ना मुझे सेकंड थॉट भी नहीं देना पड़ता कि यार ये इसने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि वो है ही इतना परफेक्ट यार। हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी इज अ सुपर पावर व्हिच कैन लाइक रिसर्च ऑन मिलियंस ऑफ लैंडिंग पेजेस एंड गेट यू द बेस्ट ऑफ इट। ये तो मैनुअली हो ही नहीं सकता, ये मैनुअली तो एक्चुअली सुपर पावर मिल गई है, ये सुपर पावर है। तो यार इसमें तो फिर आपने तो एक बच्चे की नौकरी खा ली।
100%। अब वो पैसा कैसे कमाएगी बेचारी? तो उनको भी इवॉल्व होना पड़ेगा विद तो वो अब क्या कर सकते हैं कि वो सेम पैसा या ज़्यादा पैसा कमा पाए? इसमें इवॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि एज ए कॉपी राइटर, अभी मेरी उनसे थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे, कुलवंत कोई काम है? मैंने उनको ब्लंटली बोला योर जॉब इज़ डेड। कहती नहीं फिर भी कुछ बताओ तो सही, क्या करूँ मैं? मैंने बोला यू आर ए गुड कॉपी राइटर, जस्ट एम्पलीफाई योर स्किल्स विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बोलो कि और मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ, और अच्छे से लैंडिंग पेज कैसे बन सकता है, और शायद तुम्हें अपना जो लैंडिंग पेज की कॉस्टिंग थी 25,000 से शायद वो मे बी 5,000 करनी पड़े। बट एक तरीके से कैलकुलेट करके देखो कि अगर पहले तुम्हें 25-25 हज़ार रुपये के 2 क्लाइंट मिलते थे महीने के, और 50,000 रुपये तुम कमाती थी, टाइम कितना लगता था? 3-4 दिन तुम लगाती थी, लैंडिंग पेज लिखती थी एंड ऑल दीज थिंग्स। अभी उसी को 5,000 में देना शुरू कर दो, एंड व्हाट इफ यू कैन डिलीवर लेट्स से 30 क्लाइंट्स इन ए मंथ। यस, है ना? तुम्हारा टाइम तो 2-3 घंटे लग रहे हैं ना लैंडिंग पेज बनाने में। 2 क्यों कर रही हो? 30 करो ना। आप वॉल्यूम बढ़ा पा रहे हो ना, वॉल्यूम बढ़ा दो। आप खाली प्राइस कम नहीं कर रहे हो। मैं वही कह रहा था लोगों को, वॉल्यूम बढ़ा दो, वहाँ पे आपकी तो जेब में पैसा आ गया, एंड पीपल वुड हैप्पीली पे फॉर इट। क्योंकि जिस लेवल पे तुम सोच सकती हो कॉपी राइटिंग, वो बंदा नहीं सोच सकता, क्योंकि आपको तो ट्रेडिशनली भी आता है और अब आपके पास पावर आ गई। एग्जैक्टली, तुम्हें पता है, क्रक्स पता है कि कॉपी राइटिंग में कौन से फॉर्मूला, पैस फॉर्मूला क्या है, एडा फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूलाज तुम्हें पता है, कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए तुम्हें पता है। You do it. Yeah. You make more money. मतलब she can actually create a copywriting AI specific tool. Correct. If she is very smart, हाँ, she can actually create only a copywriting tool. कर रहे हैं लोग, right, for her own expertise putting into the segment and then build a tool itself. Correct. Awesome. ठीक है। And ये सब सीखते साखते आपने अपना भी एक टूल बना दिया। जी बिल्कुल। वो उसके बारे में कुछ बताओ। हाउ वाज द जर्नी ऑफ बिल्डिंग दैट टूल? आई थिंक यू आर नॉट अ कोडर और अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोडर नहीं है जी। तो वो भी खुद कर लिया सारा सीख के? जी। ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एआई, तो एआई ने ना इतनी सुपर पावर दे दी है एक नॉर्मल ह्यूमन को, दैट अभी एक आइडिया जो आपके पास पहले आइडियाज़ होते थे, हम सोचते रहते थे कि कभी इम्प्लीमेंट करेंगे, कभी पैसा आएगा तो मैं इसको बनाऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं कुलवंत ये जो जोमेटो है ना, जोमेटो, ये मेरा आइडिया था 10 साल पहले और जोमेटो ने लॉन्च कर दिया। ये जो उबर है ना, ये मेरा आइडिया था 15 साल। मैंने कहा भाई तूने किया क्यों नहीं? तेरा आइडिया था। तो पहले लोग, आइडिया हर किसी के पास है यार आज के टाइम में, है ना? क्योंकि इंटरनेट पे कंटेंट ही इतना आ रहा है, हर रोज तो आइडियाज आ रहे हैं हमारे पास। मेरे एक दोस्त बोलते थे, कहता आइडिया किसी के बाप की जागीर नहीं है। हाँ, जो आइडिया तुम्हारे पास है वो 100 लोगों के माइंड में है। बिल्कुल। कोई एक इम्प्लीमेंट करेगा, कोई एक करेगा, और इम्प्लीमेंट शायद 5 करेंगे बट निकलेगा एक, है ना? तो आइडियाज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है, एंड आइडियाज़ को ही फिर फर्दर एम्पलीफाई करते रहना है। मैंने भी यही किया कि जब मैंने एआई सिखाना शुरू किया मेरे स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स की, जब इमेजेस बनाने की बारी आती थी तो हम जेमिनी के पास जाते थे, गूगल जेमिनी, वहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करते थे, और गूगल जेमिनी का वो जो लोडर है वो घूम रहा है, आप वेट कर रहे हो बैठे कि फ़ोटो बनेगी, फिर एक फ़ोटो बन जाती है, फिर आप दूसरा प्रॉम्प्ट लिखते हो, फिर वो लोडर घूम रहा है, आप बैठे देख रहे हो, फ़ोटो बन गई। मतलब अगर 10 फ़ोटो बनानी हो तो आप बैठे देख रहे हो, फिर बहुत टाइम लग रहा था। तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी, मुझे इसको फास्ट करना है। ओके। तो मैंने एआई खोला, गूगल का ही टूल खोला, गूगल एआई स्टूडियो। मैंने इसको बोला मुझे एक ऐसा टूल बना के दे जिसमें मैं एक ही बार में 100 प्रॉम्प्ट लिख पाऊँ, मैं क्लिक करूँ मेरे पास 100 फोटोज़ बन जानी चाहिए। ओके। एंड जेमिनी ने वो कर दिया। जेमिनी ने वो बना के मुझे दे दिया, पूरा का पूरा टूल बना के दे दिया। फिर मुझे लगा कि यार ये मैं इसको यहाँ तक ही क्यों लिमिटेड रखूँ, मैं इसको और एक्सपेंड करूँगा। अब उसमें मैंने 3D करैक्टर एनिमेशन 3D करैक्टर जनरेशन मैंने उसमें ऐड कर दिया है, मैंने फेस चेंजर उसमें डाल दिया है, मैंने ड्रेस चेंजर उसमें डाल दिया है, मैंने अपस्केलर डाल दिया है, यूट्यूब के थंबनेल्स भी बन रहे हैं अभी उसके अंदर। अरे वाह। तो मैंने उसको इतना एनहेंस कर दिया है। अगर बात करें कि उसको बनाने में टाइम कितना लगा, उसको बनाने में लगभग 1 से 1.5 महीना लगा, और गलतियाँ हुई 100% हुई मेरे से। पहले मैंने जब कोडिंग करना शुरू किया तो मैंने उसको बोला, क्योंकि मुझे पता तो था नहीं, देखो आई एम नॉट ए कोडर, मुझे नहीं पता था कैसे होता है कैसे नहीं। तो मैं सिंपली उसके पास गया एआई स्टूडियो में, मैंने बोला क्रिएट एन ऐप फॉर मी विच कैन डू ऑल दिस थिंग। तो मैंने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया था ऐप।
तो उसने मुझे एक ऐप बना के दे दी जो कि ऐप की फॉर्मेट में था। वो पूरा फुल्ली फंक्शनल हो गया, मैंने लॉन्च भी कर दिया, स्टूडेंट्स को दिखा दिया कि यार ये है वो है। बाद में मुझे पता लगा कि यार वो ऐप नहीं होनी चाहिए थी, वो एक वेबसाइट होनी चाहिए थी, SaaS होना चाहिए था। SaaS होना चाहिए था। फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें कोडिंग करते कैसे हैं। वो कोडिंग करते करते मैंने कुछ गलत कोड कर दिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी वेबसाइट ब्रेक हो गई। फिर मुझे ये नहीं पता था कि उसको रिस्टोर कैसे करते मैंने बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब पे गया, काफ़ी वेबसाइट्स पे गया, बट वहाँ पे मुझे कोई सॉलिड सोल्यूशन मिला नहीं कि इसको रिस्टोर कैसे करते हैं। तो फिर मैंने उसको आइडिया को पूरा डंप कर दिया कि चलो इसको स्क्रैच से करते हैं, एक बार फिर से बनाता हूँ। फिर मैंने दोबारा से उसको कोड करना शुरू किया, फिर कुछ और मैंने बना दिया। वो भी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कोडिंग करता गया, मुझे पता नहीं था कैसे रिस्टोर करते हैं। वो भी एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पे मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट को भी क्रैश कर दिया। पूरा का पूरा कोड मेरे से करप्ट हो गया, पूरा का पूरा डाटा चला गया और मैं मुंह उठा के बैठा हूँ 20 दिन की मेहनत पानी में गई। फिर मैंने गूगल से ही पूछा कि यार ऐसे नहीं चलेगा यार, मैं नहीं दे सकता यार, इतना टाइम मैं बार बार ब्रेक करता रहूँगा क्या इसे? कि मैं नहीं कर सकता, ये बता इसका सोल्यूशन बता, अभी मेरे को तो सोल्यूशन चाहिए। फिर गूगल ने बताया कि इसका सोल्यूशन ये है, यू शुड हैव योर कोड ऑन गिटहब एंड यू शुड डिप्लॉय दिस कोड इन वर्सेल। अच्छा। तो उसने मुझे प्लेटफॉर्म के नाम दे दिए, ये दो कोड, ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कर सकता है। मैं गिटहब पे गया, मैंने सारा का सारा कोड वहाँ पे अपलोड किया, गूगल से डाउनलोड करके वहाँ पे कोडिंग की, और कुछ दिन तो डिप्लॉय करने का मुझे नहीं पता लगा ये डिप्लॉय होता क्या है, कैसे होता है। फिर वर्सेल पे मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया और अभी सारा कुछ मेरे कंट्रोल में है। अगर कुछ मेरे से गलत भी हो जाता है गिटहब में तो मैं उसको बोल देता हूँ कि पिछला जो वर्जन था उसको रिस्टोर कर दे, वन क्लिक एंड इट रिस्टोर्स। इट रिस्टोर्स द हिस्ट्री बेसिकली। एग्जैक्टली। तो नाउ एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। और मैंने नॉन कोडर होते हुए भी एक इतनी अच्छी एप्लीकेशन बना दी है। अभी आज मैंने सुबह ही चेक किया, इट हैज़ 555 यूजर्स राइट नाउ। 555 यूजर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इसका एक अच्छा पार्ट है बिकॉज आपने ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स का कम्युनिटी बना लिया था, तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करना इजी हो जाता है, फीडबैक लूप इजी हो जाता है वहाँ से, न्यू फीचर रिक्वेस्ट वहाँ से आ जाती है। बिल्कुल, ये फायदा है। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग एक्चुअली। नहीं तो आप एक नया प्रोडक्ट रैंडमली लॉन्च कर दोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई ना कोई टेस्ट करने वाला है, ना कोई टेस्ट करने वाला है। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल 500-600 लोग, 1000 लोग, वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके प्रोडक्ट, वही बनाते हैं प्रोडक्ट तो वही बनाते हैं। लॉन्च किया था तो मैंने उनको बताया कि ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, हो सकता है बीच में किसी दिन तुम सुबह उठ के खोलोगे तो शायद ना चले और तुम्हारी इमेजेस गायब हो जाए। इसको आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो उनको फिर मैंने प्रीमियम एक्सेस दिया है मेरे प्लेटफॉर्म का कि आप यूज़ करो, आप मेरे को हेल्प करो इसको बिल्ड करने में, एंड वी आर बिल्डिंग इट स्लोली। ठीक है जी। सो नेक्स्ट आते हैं, अब जैसे AI है, हम लोग सब लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत टाइम से हैं अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नाउ AI इज़ अ बूम, इट्स अ थ्रेट ऑल्सो, राइट? आई वॉन्ट टू चेक कि AI यूज़ करने से जितना भी डेटा आज की डेट में, लेट्स से मेरे सारे क्लाइंट्स का डेटा ChatGPT में है, राइट? 2-2 साल से वो चैट चल रही हैं। बिल्कुल करेक्ट। आज मेरा क्लाइंट बोलता है सौरभ मेरे को कल इन्वेस्टर के पास जाना है, पिच डेक बना के दे दो, तो बन जाता है सब। यहाँ से कंटेंट निकलता है, गामा AI पे डाला, पिच डेक बाहर, राइट? सो ये सब करने में 10 दिन लगते थे, जो कि आपने बताया। तो अब हमें 2 घंटे भी कम लगते, 2 घंटे से भी कम ही लगता है। ऑलरेडी डाटा है, हमने तो डेटा बनाया हुआ है आपके पास, तो शायद। तो हमारे लिए थ्रेट क्या है? मी एज अ मार्केटिंग एजेंसी का सारा कुछ ही ChatGPT पे है, जी, राइट? एंड देन नोशन पे है, देन अलग शीट्स में है, फिर जोहो में है, राइट? हमारे लिए थ्रेट क्या है? लाइक कितना ये लोग हमको नोटिस कर पा रहे हैं? लाइक मैं ये बोलूँगा कि जो OpenAI जैसी कंपनी है इस टाइम वही भगवान है। दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। मेटा है, अमेजोन है, राइट? करेक्ट। तो ये कितने डेटा पॉइंट्स ये लोग कैप्चर कर पाते हैं, क्या क्या कैप्चर कर पाते हैं, और ये थ्रेट कैसे बन सकता है? थ्रेट अगर बात करें तो थ्रेट इन द सेंस आपका सारा डाटा तो हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं ना, और कहीं ना ये आपके इमोशंस को समझते हुए, आपकी नीड्स को समझते हुए आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। ओके, ठीक है, ये अभी प्रॉब्लम है ChatGPT में। ठीक है। एंड दैट एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विद सोशल मीडिया एज वेल। वो तो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया कर ही रहा है कि आप जो देखना चाहते हो सोशल मीडिया वही फीड करेगा, एंड इट विल कॉन्टीन्यूसली कीप ऑन फीडिंग। और आपने जो सोचा है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, अगर आपने ये सोचा ना कि दूध पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और अगर आपने 1-2 वीडियोस देख ली जहाँ पे वो बात कर रहा है कि मिल्क इज़ बैड फॉर हेल्थ,
ऑल द वीडियोज इन योर फीड विल बी मिल्क इज बैड, वो लूप बन जाएगा। वो लूप बन जाएगा क्योंकि एल्गोरिथम को पता चल गया आप सुनना यही चाहते हो यार, हाँ, है ना, आप देखना यही चाहते हो, तो इट विल स्टार्ट फीडिंग दैट। एंड अपोजिट टू दैट इफ यू सर्च ड्रिंकिंग मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, 2-3 वीडियोस देखो, नेक्स्ट डे से वही वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी जहाँ पर वो सिर्फ इट डिजाइन टू लूप यू इनटू एन एडिक्शन। एग्जैक्टली एंड जो आप देखना चाहते हो, जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी वही आपने दिखा थोड़ा रहा है। बहुत देख लिया, इट विल Exactly. ट्राई टू लूप यू इन। करेक्ट, एंड सेम इज ट्रू फॉर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वही आपको बताएगा जो आप सुनना चाहते हो। तो Okay. उसका आपको एक छोटा सा हैक लगाना पड़ता है। चैट जीपीटी की मेमोरी को आपको अपडेट करना है, उसको ये बोलना है कि तूने जो भी मैं तेरे को आइडिया दूंगा, तूने उस आइडिया को और ज़्यादा एक्सपेंड करके और उसको तूने अपोज करना है उस पर्टिकुलर आइडिया को। Okay. डोंट एग्री ऑन वट एवर आई से, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द आंसर्स आर विच आर राइट। तो आपको ये उसको अपडेट करना पड़ेगा चैट जीपीटी को, ओके, उसको बताना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे जाके कर, सेटिंग्स आपको में सिर्फ जाके? चैट में लिखना है कि अच्छा, whatever chat में the ही ideas लिखना I है, give to okay. you, you always oppose those ideas and think those ideas outside the box, ठीक है। and give me the answers which are true, not what I want to listen. Update this in your memory. Click, है। and it will update. ओह, दैट इज नाइस। सो क्यों ये होता है, मैं भी कुछ भी प्रॉम्प्ट डालूंगा तो वेरी नाइस, हाँ। ही स्टार्ट्स विद वेरी नाइस, लाइक मेरे को अच्छा फील होना चाहिए। Exactly. तो मेरे को एक और बात बताओ, जैसे यू आर कमिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड, जहाँ पे आप डेटा भी रिसर्च करते थे, फिर ब्लॉग्स मैनुअली लिखते थे एंड ऑल, राइट? correct. प्रूफ रीडिंग भी करना होता था, सब Proofreading करते थे। प्रूफ रीडिंग यूज्ड टू बी अ जॉब। जॉब होती थी, एक अलग जॉब होती थी प्रूफ रीडिंग, है ना? फीमेल थी, हाँ, दे बोथ वर फ्रॉम यूएस। हाँ, correct. उनका काम सिर्फ ये सिर्फ प्रूफ रीडिंग था ना, सिर्फ ग्रामर चेक करना। उस टाइम पे Correct, टूल्स भी नहीं थे, correct, ग्रामरली भी नहीं correct, था। हाँ। तो एक वो हम लोग इतना दिमाग लगा के कंटेंट लिखते थे, हम एक्चुअली में मेहनत करते थे, उससे हमारे मेंटल कैपेसिटीज बढ़ते थे। अभी जो चैट जीपीटी का रिपोर्ट आया है विच सेज पीपल हु आर कंसिस्टेंटली यूजिंग चैट जीपीटी एंड सोशल मीडिया, their brain are degenerating now, they are not able to think without a chat gpt. So using chat gpt, like हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमारी लाइफ ऐसी है, राइट? मैं सोशल मीडिया अवॉइड नहीं कर सकता। Correct. मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मेरा डिजिटल मीडिया में बिजनेस ना हो तो मैं आज सारे अकाउंट डिलीट कर दूंगा। लाइक आई एम नॉट देयर फॉर एनी पर्सनल फन, सही बात मेरे लिए बिजनेस है। ऑब्वियसली। तो ये सब भी हमें रखना है लाइफ में, और अपने ब्रेन की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। लाइक वी नीड टू बी क्रिटिकल थिंकर्स एंड लीडर्स। Correct. तो वो आप कैसे मेंटेन रखते हो? देखो, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है, कि क्या वो हमारे माइंड को एम्पलीफाई कर रही है या हमें नीचे की तरफ लेके जा रही है ना टेक्नोलॉजी। दिस इज़ लाइक द कोर क्वेश्चन विच वी शुड थिंक, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ वी इवॉल्व, है ना। अगर आज से 20 साल पहले की बात करें या लगभग 25-30 साल पहले की बात करें, फ़ोन नया नया आया था मार्केट में। जब तक फ़ोन नहीं आया था, लोग आपस में बात करते थे, है ना, एक दूसरे के घर जाते थे। हम मामा जी के घर जाते थे, मुझे याद है, बुआ के घर जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके घर बैठते थे, कोई चाय पानी पीते थे, 2-3 दिन रुकते थे। यस, वो एक बॉन्ड था, है ना, रिश्तेदारों के घर जाना आना, एक दूसरे से मिलना, या बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना। फ़ोन ने लाइफ इजी किया कि हम कहीं बैठे किसी को फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन कहने में तो ये कहा जाता है कि उसने फासले कम कर दिए। हाँ, बट इन रियलिटी उसने दूर फासले कर दिए। बहुत बढ़ा बहुत दिए, बढ़ा है ना। दिए। हम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से, करेक्ट। जा ही नहीं रहे हैं, फ़ोन पे पूछ रहे हैं, हाँ जी बुआ जी कैसे हो, बस ठीक है, खत्म। सब ठीक, Formality हो गई। ओके डन, ठीक है जी, चलो। और सोचो पहले फोन नहीं था तो बिना बताए किसी के घर चले जाते थे, उन्हें अच्छा लगता था, हाँ, है ना। अभी फोन करके 4 बार चेक करके जाते हैं। करेक्ट कि घर पे हो या नहीं। Yes. तो एवोल्यूशन तो हुआ है, देखो, है ना। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जाएगा, वी वुड बी बिकमिंग मोर डम्बर, ओके, है ना। वो होते ही जा रहे हैं, देख हाँ, रहे हैं, हाँ, है वो ना? तो हो ही रहे हैं। पहले रिश्तों की कितनी अहमियत थी, हाँ, खाना पीना अच्छा था, रहना सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड। तो कहीं ना कहीं हम डाउनग्रेड तो हो रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल या हमारा रहना। तो चैट जीपीटी भी मेरे ख्याल से वही काम कर रहा है ना। धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी, आज के टाइम में फ़ोन पे इतनी डिपेंडेंसी है कि शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी जेब में फ़ोन ना हो, करेक्ट, है ना। डिपेंडेंसी इतनी हो गई है। हमने रास्ते याद करना छोड़ दिए हैं। हाँ, Now let's come to what is the future of AI image and video generation. जी, If somebody wants to start a career in this industry, Right. what is the possibilities available? देखो पॉसिबिलिटीज़ इसमें बहुत हैं, क्योंकि एवरी बिग प्लेटफॉर्म इज़ शिफ्टिंग टू एआई इमेजेस राइट नाउ। अभी आप खुद देखेंगे थोड़े टाइम बाद
अमेज़न का पूरा प्लेटफॉर्म एआई ड्रिवन हो जाएगा। आप खुद की एक फ़ोटो अपलोड करो, सारी की सारी ड्रेसेस जो आप देखोगे आप पहने हुए दिखोगे वहाँ पे पूरे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप सिलेक्शन कर पाओ कि ये ड्रेस मेरे पे कैसे दिखेगी। कंपनीज ने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है एआई को मार्केटिंग के लिए। कमर्शियल्स बन रहे हैं, ग्राफिक्स बन रहे हैं, स्मॉल वीडियोस बन रही हैं, और अभी तो हॉलीवुड ने भी अडॉप्ट कर लिया इसको। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ऑस्कर में जो मूवीज़ फ्यूचर में नॉमिनेट होंगी, दे हैव अलाउड टू यूज़ एआई इन द वीडियोज़। ओके। तो ऑस्कर विनिंग मूवीज़ बनेंगी अभी एआई की मदद से। और कितना कम हो गया है खर्चा, कितना कम हो गया है। अगर हम बात करें, जो अभी एक मूवी आई थी जिसमें थानोस था, जो वो पूरा जो एक सीन बना था, उसमें मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार लोगों की टीम ने मिलके वो वीएफएक्स क्रिएट किए थे, और हज़ारों कंप्यूटर दिन रात तक चले थे वो एक ग्राफिक्स को बनाने के लिए। आज वही काम टेक्स्ट में हो रहा है, चैट लिखो, प्रॉम्प्ट लिखो, सब कुछ हो जाता है। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे एआई वीडियोस और एआई इमेजेस को अडॉप्ट करेंगे सभी लोग, और सारा वर्ल्ड एआई ड्रिवन हो जाएगा। अभी वेडिंग फोटोग्राफी सारी चेंज हो जाएगी। कमर्शियल्स जो बनते थे, जो ई कॉमर्स के फ़ोटोशूट होते थे, दे ऑल आर चेंजिंग। अभी काफ़ी बड़ी सारी वेबसाइट, नाइक ने अभी रिसेंटली यूज़ किया था, प्यूमा ने भी आई थिंक किया था। तो एआई इमेजेस तो यूज़ कर रहे हैं सारे। तो एक जैसे मान लो कोई D2C ब्रांड है जिसका प्रोडक्ट है, लेट्स से इट्स अ कॉस्मेटिक ब्रांड, तो नॉर्मली अगर एक प्रोडक्ट शूट कराता है तो कितना खर्चा आता है उसके लिए एक दिन में? सिंगल प्रोडक्ट का अगर बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये तो चार्ज करती हैं पर अच्छी डे कंपनी शूट जो है। हाँ ठीक है। और अगर यही काम हमें लेट्स से हमने एआई से करना है, एक बेसिक आईफोन से फोटो खींचा प्रोडक्ट का, 25 रुपये में हो जाएगा। मैंने 2023 में मेरे परफ्यूम ब्रांड का फोटोशूट करवाया था। ओके। और मेरे परफ्यूम ब्रांड में 10 प्रोडक्ट्स हैं, सो वी हैव लॉन्च्ड ओनली 10 परफ्यूम्स। और उसका मुझे 2023 में फोटोशूट का कॉस्ट आया था 40,000 रुपीज़। ठीक है। 4,000 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, सिर्फ स्टैटिक शॉट्स। जिन्होंने परफ्यूम के फ़ोटोज़ खींचे थे उन्होंने कुछ, और 2-4 फोटोज़ हमें मॉडल्स के साथ दी थी। ठीक है। तो 40,000 रुपये लगे थे। आज वही शॉट मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये में पूरा का पूरा शॉट रेडी कर सकता हूँ, जितने भी शॉट्स उन्होंने एआई से। ठीक है। सो लेट्स से इफ समबडी हैज़ टू लर्न दिस, लाइक किसी ने अभी तक भी उस पर ध्यान नहीं दिया जी। लेट्स से कोई अकाउंटेंट है शायद आज भी 15,000 20,000 की जॉब कर रहा है, ठीक है, एंड वो इसको अगर पॉडकास्ट को सुन रहा है और उसको स्टार्ट करना है सीखना जी चैट जीपीटी इमेजेस, राइट, तो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को यूज़ करना है। और चैट जीपीटी में जब आप इमेजेस बनाते हो तो उसको बनाने का एक फॉर्मूला है। ठीक है। नॉर्मल अगर आप लिख दोगे अ मैन सिटिंग ऑन ए सोफ़ा, तो वो एक नॉर्मल सी फ़ोटो आपको बना देगा। लेकिन उसको आपको थोड़ा सा एडवांस में इनपुट देना होता है कि जो सोफ़ा पे मैन बैठा है वो दिखता कैसा है। ठीक है। उसने कपड़े क्या पहने हुए हैं, जिस सोफ़ा पे बैठा है उसका कलर क्या है, किस तरीके का सोफ़ा है, किस शेप का सोफ़ा है, जहाँ पे वो सोफ़ा पे बैठा है वो आसपास एनवायरनमेंट कौन सा है, ऑफिस में बैठा है या किसी घर में बैठा है, या लाइक वेयर ही सिटिंग। ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिफाइन करना है। फर्दर जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उसमें लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके। जैसे यहाँ पर अभी हम लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट है, किधर से लाइट आ रही है, तो हमें डिफाइन करना होता है चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट लिखते टाइम कि यहाँ से लाइट आएगी और इस कलर की लाइट आएगी। ओके। सो दीज आर द बेसिक्स विच यू शुड स्टार्ट। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे कैन स्टार्ट प्लेइंग विद चैट जीपीटी एंड डू ऑल दीज पैरामीटर्स, कि आपको पूरा डिफाइन करना है सब्जेक्ट को, वो कौन है, कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ पे बैठा है, आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी लाइटिंग है। इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अमेजिंग इमेजेस फॉर यू। एंड वंस यू स्टार्ट सीइंग योर टेक्स्ट बिकमिंग एन इमेज, तो वो फीलिंग ही अलग होती है। ओके। तो इसमें लेट्स से बहुत सारे लोग हैं जो अभी इंग्लिश बहुत अच्छे से टाइप करना नहीं जानते, या उनको नहीं आती, इंग्लिश इज़ नॉट देयर गुड लैंग्वेज। करेक्ट। वो लोग थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि यार एआई चाहिए, कंप्यूटर यूज, तो इंग्लिश आनी चाहिए मुझे। जी। वो लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हिंदी को बहुत अच्छे से समझता है चैट जीपीटी। आप तो हम बोल के भी बता सकते हैं, जैसे बोल के भी बता सकते हैं, बिल्कुल। आप ऑन करो अपना ऑडियो, ठीक और है, उसको बोल के बताओ कि मुझे एक आदमी चाहिए जो सोफे पे बैठा हुआ, नीले रंग का सोफा है, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है। इतना सिंपल हो सकता है? हाँ। अरे वाह। और इट विल क्रिएट द इमेज फॉर यू। उसके आसपास ऐसी लाइटिंग है, पीछे ऐसे पर्दे हैं, आप उसको बोलो, वो बना देगा सारा। ये सही है। सो ये सिस्टम सही है। करेक्ट। एंड आई थिंक आपका भी, आप एक वीकली वेबिनार अपना रन करते हो इस चीज़ को लेके, सो कैन दे जॉइन दैट?
हाँ, अगर किसी को सीखना है, एवरी संडे आई डू वेबिनार एट 11 AM, ओके, और उसमें काफ़ी लोग आप आते हैं। बेसिक्स उसमें सिखाते हो उसमें 1-1 हमें घंटे के सिखाता हूँ वेबिनार क्या में? लाइटिंग है, कहाँ से लाइट आएगी, कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट का ठीक है। फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उससे वो एक किक स्टार्ट उनको मिल जाएगा एंड दे विल गेट अ कंफर्ट टू जी, जी, स्टार्ट प्लेइंग ऑन देयर ओन, करेक्ट, एंड उसके बाद वो चाहें तो और कोर्सेज फिर कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है, so before we go to the next segment, which is Founders Toolkit, if you would like to learn AI image and video generation, I'll drop a link of Kulwan's course in the description, right? At least take a 2 hour time on a Sunday 11 a.m. and attend the webinar so that you can actually see the magic, right? I will try to share a lot of images in the later part of the podcast as well, or in the teaser part also, so you can actually see what really is happening, because यहाँ पे हमने visual नहीं दिखाया आपको, ठीक है? So let's go to the Founders Toolkit, right? A rapid fire round where we are going to talk about different kind of tools for different applications that people can directly use and start playing with AI so that they can save their time, energy, money and actually make more money, right? Okay. So 3 ऐसे AI टूल जिनके बिना आपको लगता है कि इस टाइम आपकी लाइफ नहीं चलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि उसको मैंने इतना ज़्यादा ट्रेन कर दिया है कि माई एवरीथिंग इज़ इनसाइड चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी से जब आप लगातार बात करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी को भी समझ आता है ना कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। सो फर्स्ट इज़ चैट जीपीटी, सेकेंड इज़ गूगल जेमिनी, क्योंकि जेमिनी से मैं काफ़ी सारी फ़ोटोज़ बनाता हूँ, और जब से ये नैनो बनाना आया उसके बाद तो डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा हो गई है जेमिनी पे, क्योंकि इट कैन कैप्चर योर फेस, इट कैन कैप्चर योर इमोशंस। तो सेकंड इज़ गूगल जेमिनी, थर्ड इज़ मिड जर्नी। ओके, तो अगर आपको बहुत ही सुपर रियलिस्टिक इमेजेस बनानी है देन मिड जर्नी इज़ द नंबर 1 टूल इन द वर्ल्ड। Okay, so these are 3 all for image generation. ChatGPT for regular all the things ChatGPT also. for everything. For content also and everything also. जी। Then comes आपका Nano Banana for images and very nice images. Then you go to Midjourney. बिल्कुल, अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए देन मिड जर्नी। And ये टूल तीनों टूल लाइक कितना है आप इनके लिए पे करते हो मंथली? तीनों टूल अभी चैट जीपीटी तो फ्री हो चुका है इंडियंस के लिए, ठीक है, एंजॉय इट, फ्री हो चुका है। सो चैट जीपीटी, सेकेंड इज़ जेमिनी, गूगल का जेमिनी। उसके ना अलग अलग प्लान्स हैं एंड इट गिव्स यू मल्टीपल प्राइसिंग इन डिफरेंट प्लान्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी गूगल वन करके उनकी एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको 100 GB का स्पेस शायद वो देता है गूगल। तो गूगल बोलता है इफ़ यू बाय माई गूगल वन सब्सक्रिप्शन आई विल गिव यू द एक्सेस ऑफ जेमिनी फॉर फ्री। ओके, ठीक है। सेकेंडली, अगर डायरेक्टली आप गूगल जेमिनी लेते हो तो वो 1040 रुपये के आसपास पर मंथ करता है, 1040 रुपीज़ पर मंथ। थर्ड ऑप्शन इज़ विच आई पर्सनली यूज़, वो बहुत अफोर्डेबल भी है। उसमें क्या है कि यू क्रिएट योर पर्सनल ईमेल आईडी विद गूगल, ओके, जो कि लगभग 300 या 400 रुपये पर मंथ की आपकी कॉस्टिंग आती है। यू क्रिएट योर पर्सनल ईमेल आईडी विद गूगल एंड जैसे वो ईमेल आईडी बनाते हो आपको जेमिनी वो फ्री में देता है उसके साथ, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है जी सूट पे, राइट? करेक्ट, जी सूट। ठीक है, कूल। तो दैट इज़ द ऑप्शन विच। तो थर्ड अगर बात करें मिड जर्नी, इट्स $10 a month। $10 a month. So $10 like another 700-800 रुपये, 700-800 रुपये महीना जी। ठीक है, कूल। एंड उसी मिड जर्नी को यूज़ करके लाइक एक इमेज मान लो किसी ब्रांड के लिए हमने जनरेट की जी। वो इमेज हम कितने की बेच सकते हैं, लाइक हाउ मच यू कैन चार्ज फॉर दैट इमेज? अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट इमेज की प्राइसिंग कम हुई है। ठीक है, हमारे एक बहुत ही रिप्यूटेड पर्सन है मिस्टर संदीप महेश्वरी जी, आप सभी लोग उन्हें जानते हैं। उनका ब्रांड है इमेजेस बाजार। तो वो अभी स्ट्रगल कर रहा है, इट्स गोइंग डाउन, क्योंकि वो पर फोटो 40-40 हज़ार रुपये की एक फ़ोटो मिलती थी वहाँ पे। 40,000 रुपये की? 40,000 रुपीज़ की सिंगल फ़ोटो, वो जो उन्होंने HD कैमरा से खींच के डाली होती थी। ओके, वो फोटोज़ होती हैं जो ब्रांड्स बाय करते हैं। जैसे आपने कोलगेट की कोई ऐड देखी होगी, बड़े बड़े जो बिलबोर्ड्स लगते हैं या पम्फलेट फ्लायर्स बनते हैं, तो 40-40 हज़ार रुपये की एक फ़ोटोज़ वो बेचते थे। तो अभी क्योंकि AI से हमें इतनी सुपर पावर मिल चुकी है कि हम कुछ भी बना सकते हैं। नॉर्मली अगर एक छोटा बिजनेस है तो आप, मैं जो पर्सनली चार्ज करता हूँ, मैं खुद की प्राइसिंग बता सकता हूँ, तो उससे आप दैट विल बी ग्रेट। कि हाँ, तो मेरे पास अगर कोई ब्रांड आता है और वो बोलता है कि, और मैं 1-2 इमेजेस का ऑर्डर नहीं लेता हूँ, कोई बोलता है कि मुझे 4 फोटो बना दो या 5 बना दो, मैं कहता हूँ नहीं, आई कांट डू इट। सो मिनिमम 30 फोटोज़ का हम ऑर्डर लेते हैं
एंड राइट नाउ आई एम चार्जिंग 500 रुपीज़ पर फोटो, पर फोटो, दैट्स ओनली। विच मीन्स मैंने एक 1500 रुपये के 2-3 टूल लिए, 1500 2000 रुपये खर्चा, हाँ, एंड इफ आई एम गुड एट इट Correct. आई कैन मेक एनीवेयर बिटवीन लाइक एक ऑर्डर पे 2-3 फोटो ही 15 भेज से दिए 20 हज़ार रुपये तो मैं कमाई सकता हाँ हूँ, हाँ, बड़े है आराम ना। से। सो टूल का खर्चा तो मेरा 3-4 फोटो में भी निकल निकल जाएगा, गया। राइट। ए बिगिनर कैन टेक अ ऑर्डर ऑफ इवन 1 फोटो ऑल्सो, हाँ हाँ, राइट। एक दो अपने फ्रेंड सर्कल में ले लो यार कि मैं तेरे लिए फोटो बनाता हूँ, निकाल 300 रुपये। एंड आई थिंक यूट्यूब थंबनेल बनाना एक बहुत बड़ा बिजनेस है इस टाइम पे, लाइक एक true, पेन है कि थंबनेल डिजाइन कैसे Correct. करें, उसमें चैट जीपीटी स्केल पे हेल्प कर उसमें हाँ, सकता है। उसमें आप फोटोज बना सकते हो, उनके लिए डिफरेंट सीन्स या डिफरेंट हाँ। ग्राफिक्स जनरेट करके दे सकते इवन टैगलाइन जनरेट करनी है या उसका लिखना Ideas are क्या है endless, थंबनेल हाँ, पे, बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक इफ अ स्मार्ट गाय लर्न्स द टेक्नोलॉजी एंड ही लर्न्स वेयर इट कैन बी सोल्ड, पैसा बनाने का प्रॉब्लम नहीं पैसा है तो आज के हाँ, डेट में, पैसा ना? तो बनेगा इसमें। एंड घर बैठ के आप रिमोट पे कितना भी काम कर इजी सकते मनी है, क्योंकि And ये this एक is ऐसी easy स्किल है, इसको करने में मजा आएगा आपको, हैं। मजा आएगा। दिस Burden इज नहीं है लाइक ना। ये ना मेरे जैसा वो नहीं है कि मैकेनिकल इंडस्ट्री में हो, दिन का 70-80 किलोमीटर बाइक चलाना है, हाँ। कहीं से लोहा खरीद के लाना है, फिर उसे छील के कस्टमर को देना है, फिर वो गाली देगा कि ठीक नहीं बना ठीक नहीं है, हाँ। है ना। वो वाला काम नहीं है अभी। अभी आप Exactly. यू आर सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम विद जॉय। with joy, just a laptop and a mobile phone, you can create money. और हाँ, So actually now you are actually creating more money with every piece of content that you create. Correct. So मैंने ना एक बार 2023 में चेक किया था कि यार तू 4 साल से कंटेंट लिख रहा है लिंक्डइन पे, तो मैं मेरा डेडिकेशन हो गया था, जैसे आपने बताया ना आप आधा घंटा मीडियम पे लगाते हो पढ़ने में, बिल्कुल। मेरा डेडिकेशन हो गया था जब मुझे कंटेंट समझ में आया कि कितना बड़ा हो सकता है, कि भाई कुछ भी करके लिंक्डइन, रोज आधा घंटा 1 पीस ऑफ कंटेंट आई हैव टू राइट। एग्जैक्टली, अच्छा लगे ना लगे, ग्रामर बात है, गलत लिखना है, ही कुछ लिखना भी है। है, लिखना ही Correct, लिखना लिखना ही है। लिखना है, बिल्कुल। आइडिया इज लिखना, हाँ। ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट किया 2023 में आके कि यार कितना रेवेन्यू हुआ है, ये कंटेंट से फायदा हो भी रहा है कि नहीं। सो जब मैंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कैलकुलेट की और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया, तो हर पोस्ट ने मुझे 5750 रुपये बना के दिए थे एवरेज। वाह, दैट्स अमेजिंग। अब मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप ये मत सोचो कि अगले 2 महीने में क्या होगा, आप ये सोचो कि 4 साल का एवरेज निकालोगे ना, करेक्ट, तो आपने हर पोस्ट पे हर उस आधे घंटे में 5750 रुपये तो कमाए हैं। जी जी। स्टार्टिंग किसी की निश बड़ी हो सकती है तो वो और ज्यादा कमा सकता है। करेक्ट करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन निश, It depends on niche और to niche. स्टार्टिंग में कभी भी ट्रैक्शन नहीं आएगा, नहीं दैट आएगा। इज गारंटेड। Correct. कि स्टार्टिंग में तो सक्सेस एकदम से तो नहीं आएगी, है ना। आपको सीखना पड़ेगा, बहुत सारी गलतियां आप करोगे, उनको इम्प्रूव करोगे। दिस इज हाउ यू लर्न एंड दिस इज हाउ यू मेक मनी एंड दिस इज हाउ एनीवन इन द वर्ल्ड हैज मेड मनी। सो नेक्स्ट पार्ट इज 3 इमेज जनरेशन टूल्स आपने बताई दी ऑलरेडी। 3 वीडियो जनरेशन टूल्स दैट यू आर यूजिंग। वीडियो के लिए जो मेरा सबसे फेवरेट टूल है दैट इज क्लिंग AI। ओके, मैं बहुत यूज़ करता हूँ उसको, klingai.com। अभी रिसेंटली मैंने यूज़ करना शुरू किया है गूगल का VO3, अभी 3.1 आ चुका है। और अभी रिसेंटली सोरा ने एक बहुत अमेजिंग टूल ड्रॉप किया, सोरा 2, जो Okay. वर्जन 2 आया, दैट इज़ अमेजिंग। सो 3 टॉप टूल्स आर क्लिंग AI, गूगल का VO3 एंड सोरा 2। Sora 2. Okay. Any tools that you think you tried, spent your time and you did not like them? ऐसा अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फीचर्स तो सभी में होते ही हैं, है ना। एक टूल मैंने अभी ट्राई किया था, बहुत बड़ा टूल है, बहुत फेमस टूल है, multi-million dollar, आई थिंक $1 billion कंपनी है। उसके मैंने कुछ AI फीचर यूज़ किए थे, मुझे मज़ा नहीं आया। नाम लेना चाहेंगे? बता देता हूँ ऑडियंस को, इट्स canva.com। तो AI उसके जो फीचर थे ना, मज़ा नहीं आया मेरे को। ठीक है। सो Canva is anyway good at graphic design, right? जो basics था, but AI में I think AI में अभी उतना so ज़्यादा they are not mainstream AI company actually, ना, they are a design company. Design हाँ, company, हाँ। ठीक है, cool. By the way, I agree with you. I am on Canva from 2017-18 I think, जब मैं फोन से AI यूज से करता कुछ था। ट्राई yes. किया आपने? नहीं देता ना, वो मज़ा नहीं आता है। AI से 2-3 चीजें यूज की हैं, बट इट इज नॉट दैट एडवांस्ड ऑफ AI कि वो एक्चुअल आपको आउटपुट निकाल, यूजेबल आउटपुट नहीं है उसका। डायरेक्ट जो है ना, तो हम मैनुअली ही कर रहे हैं उस पर सारा काम अभी। सो अब हमने ये सोचा दैट विल यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट डिजाइनिंग ऑन कैनवा सो दैट वी हैव अ प्रॉम्प्ट, पुट इट ऑन डिफरेंट टूल्स ऑन AI। आई थिंक वी नीड टू लर्न मोर फ्रॉम यू नाउ कि डायरेक्टली हम चैट GPT पे वो ह्यूमन लुकिंग थंबनेल कैसे बना सकते हैं, मैं आपको है सिखाऊंगा ना। सारा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम एक पॉडकास्ट में से ना कभी कभी 14-15 क्लिप्स निकालते हैं, फिर हमें वो रील्स के कवर्स बनाने हैं। Correct. सो इट्स लाइक अ मास प्रोडक्शन फॉर मी ऑफ कंटेंट नाउ। एंड अभी तो मैं पूरे महीने में 2 ही एपिसोड शूट कर रहा हूँ। जब ये 10 एपिसोड जब होंगे ज़्यादा तो हो मास जाएंगे प्रोडक्शन कैसे होगा, टीम कैसे मैनेज होगी। Correct. अच्छा, एक बहुत बड़ा जो सवाल रहता है ना कंटेंट वाले लोगों के पास,
कि इतने सारे वीडियो इमेजेस सब जनरेट कर लिए, इस कंटेंट को रखें कहाँ? क्या डिवाइस में रखें, हार्ड ड्राइव में रखें, गूगल ड्राइव में रखें, इनको इसको स्टोर कहाँ करें? और लाइक कब ऐसा टाइम आता है कि इसको डिलीट कर दें? हाँ, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या मैं इस कंटेंट को डिलीट करूँ या ना करूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो यूज़ करता था, आज तक जो मैं यूज़ करता आया था, मैं हार्ड डिस्क यूज़ करता हूँ। ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो होती हैं, ठीक है। जब मेरी एक हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, मैं नेक्स्ट बाय कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी मेरे पास 6 हार्ड डिस्क हैं 1 TB की, 1.5 TB की हैं। ठीक है। तो 6 हार्ड डिस्क मेरे पास हो चुकी हैं जो भरती रहती हैं। ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि यार ये मैं कब तक करता रहूँगा, है ना। हार्ड डिस्क हो सकता है क्रैश भी हो जाती है ना, हो जाती है क्रैश। तो अभी रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम गूगल G Suite टू माइक्रोसॉफ्ट 365। तो मैंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस G Suite से निकाल के 365 पे मूव कर दिया है। नाउ विद एवरी ईमेल, जितनी भी मैंने ईमेल्स वहाँ बनाई है, राइट नाउ आई हैव 4 ईमेल्स विद देम। सो फॉर एवरी ईमेल इट हैज़ गिवन मी 1 TB स्पेस। So now I can upload my data there. Now I can upload my videos. अभी मेरे सारे के सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रख लिए हैं, क्योंकि अदरवाइज तो मैं अपनी हार्ड डिस्क में रखूंगा या लैपटॉप में रखूंगा, स्पेस घेर के बैठे रहेंगे, नाजायज किसी काम का नहीं है ना। रिकॉर्डिंग हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन। तो अभी मैंने वो सारे के सारे जितने भी मेरी कोर्सेज हैं, सारे के सारे जैसे वो रिकॉर्डिंग हो जाती है, कोर्स फाइनल रेडी हो जाता है, उसको अपने LMS में अपलोड कर देता हूँ और उसकी एक कॉपी मेरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जो 1 TB का वन ड्राइव करके उनका प्लेटफॉर्म है, वन ड्राइव में अपलोड कर दो। और ये कितना चार्ज करता है आपसे मंथली? बहुत ही अफोर्डेबल। अभी इनकी एक ईमेल की अगर मैं कॉस्टिंग बात करूं तो 1350 रुपये साल के। ठीक है। 1350 रुपीज़ फॉर 1 ईयर फॉर 1 ईमेल। 1 ईमेल। सो आप वो 7-8 हज़ार रुपये साल को जो आपके 4 ईमेल आईडीज हो गई, हाँ आप उसका पे करते हैं। करेक्ट। और आपको हर ईमेल आईडी पे 1 TB स्पेस मिलता है। ठीक है। व्हाटएवर द नंबर ऑफ ईमेल्स यू क्रिएट यू गेट 1 TB व्हिच इज। सो आपको वो हर ईमेल पे लॉगिन करके आप 1 TB डेटा स्टोर कर सकते हो उसमें, देन यू कैन ओपन अ न्यू ईमेल आईडी। करेक्ट। ठीक है। और आई थिंक जितने AI टूल्स हैं अभी मेजरली दे आल्सो हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी। उनकी होती है है ना, कुछ तो उनका भी एक लिमिट होता है, या फिर आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगा। वो आपके प्रोजेक्ट्स के बेस में डेटा सेव रहता है और आप बार बार कभी भी डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी। करेक्ट, है ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कूल। सो हमारे पास इमेज जनरेशन टूल्स हो गए, वीडियो जनरेशन टूल्स हो गए, डेटा स्टोरेज कैसे करना है वो भी हो गया। एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव व्हिच इज माय ओन पर्सनल बिगेस्ट क्वेश्चन, हर रोज इतने सारे टूल्स आते हैं। 100%. You as a marketing agency, like me as a marketing agency, have a lot of client work to do anyway, lot of sales work to do anyway, proposals to send anyway. Correct. Now how do we create a stack कि भाई ये stack के बाद मैं सॉर्टेड हो जाऊंगा, क्योंकि रोज नया टूल आता है तो मेरे पास उतना डीप रिसर्च का टाइम नहीं है हर रोज। करेक्ट। कि मैं एक नए टूल को चेक करूं कि इसमें क्या होगा। जैसे हमने बीच में हेजन यूज़ किया, एक आध वीडियोस बनाए फिर छोड़ दिया। सो मुझे ना एक्चुअली लगा कि वो शायद हम ना रिसर्च भी उस जो हमने $35 एक महीने का दिया था, हमने उसे भी यूटिलाइज नहीं किया। वो वैसे ही चला गया ना, वो भी वेस्ट ही गया, एक आध वीडियो बनाया हमने, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे स्टैक बनाएं, किस तरीके से सोचें इस AI टूल के स्टैक को, किसी भी लेट्स से अगर एक मार्केटिंग एजेंसी या किसी स्टार्टअप को एक स्टैक बनाना है कि यार ये तो बेसिक हैं जो कि प्रूवन टूल्स हैं। करेक्ट। अब इसके बाद के आपको रिसर्च करने ही पड़ेंगे। जी, इसका अगर आप मेरे से ईजीएस्ट आंसर पूछो तो वो ये होगा कि किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करो जो ऑलरेडी जो काम आप करना चाहते हो वो कर रहा है। ही मस्ट बी यूजिंग ऑल ऑफ दोज टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है। क्योंकि दूसरा मेथड तो नॉर्मल और वर्ल्ड नोन मेथड है कि रिसर्च करनी पड़ेगी, है ना। और इतना टाइम किसी के पास है नहीं कि मैं रोज एक नया टूल बाय करूं, मैं रोज उसको ट्राई करूं। मेरे केस में तो मैं करता हूं। हाँ, आपके लिए वो मेनस्ट्रीम बिजनेस हो गया ना। आई रिसर्च अ लॉट सीरियसली एवरी डे आई एम बाइंग ए न्यू टूल। ठीक है, अभी सुबह मैंने बाय किया recraft.ai $12 पर मंथ। तो मैं रोज कुछ ना कुछ कोई नया टूल ट्राई करता हूं। अप्रॉक्सीमेटली अपने साल में कैलकुलेट किया कि रिसर्च बेस्ड जो टूल्स आपने खरीदे और बाद में यूज नहीं किए जी, उस पर कितना खर्चा किया? लास्ट ईयर का था $1410, $1410, लाइक 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख रुपए। ठीक है। तो मैं पूरी शीट बनाता रहता हूँ कि कितना दिस इज ओनली रिसर्च। हाँ, तो मतलब मैं एक्चुअली लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ना अभी ये फैला दिया है सोशल मीडिया पे कि यार डिजिटली कुछ भी स्टार्ट करना है इज फ्री। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम है बट फ्री तो नहीं है।
फ्री में ऐसा है कि लिमिटेशंस हैं, क्योंकि टूल इतने स्मार्ट तो हैं यार कि वो आपको फ्री में उतना सा कुछ दें कि आपको एक बार मज़ा आए उसको यूज़ करने का, ताकि अपग्रेड करो। जियो ने भी तो यही किया था, पहले फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, बाद में पैसे ले लो। तो फ्री में आपको कभी भी वो फीचर नहीं मिलेंगे जो एक वर्ल्ड क्लास लेवल के फीचर होते हैं। यू कैन स्क्रैच द सरफेस, आपको बेसिक आइडियाज़ मिल जाएगा, बट अगर आपको रियली बिजनेस को बढ़ाना है, रियली इफ़ यू वांट टू सी द ग्रोथ इन योर बिजनेस, यू विल हैव टू स्विच टू द पेड टूल्स। राइट। सो हमें वो मेंटालिटी बनाना पड़ेगा कि यार ठीक है, देखो यार, अगर पैसा कमाने का सोच रहे हो तो लगाने से क्यों डर रहे हो, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वही बताता हूँ, एक फिजिकल शॉप शुरू में, जैसे मेरे फादर ने जब स्टार्ट किया था तो बैंक लोन्स लेते थे। घर मॉर्टगेज करके बैंक लोन ले रहे हैं 2 करोड़ का। करेक्ट। वो बुखार हो ही नहीं सकता था, बिकॉज EMI देनी है, देयर इज नो अदर वे। बिल्कुल है ना। तो अभी तो लोग ना वो जो फ्री टूल मांगते हैं, यार इसका वैसे $5 है, इसका फ्री मिल जाएगा, फ्री वर्जन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फ्री तो नहीं हो सकता, बट यू कैन बिल्ड अ स्मॉल स्टैक, फिक्स अ बजट कि मुझे इतना लगाना है, देन स्टार्ट वर्किंग। करेक्ट। मैं भी मेरी ऑडियंस को ना कॉन्टिन्यूसली रिकमेंड करता रहता हूँ कि फ्री के पीछे मत भागो। चाहे महीने का एक टूल ट्राई करो, इफ़ यू वांट टू ट्राई। और अभी तो मेरी ऑडियंस के पास तो फ्रीडम ये है कि मैं उनके लिए ट्राई करता हूँ, मैं बहुत स्पेंड करता हूँ, तो मैं जो भी मुझे बेस्ट मिलता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि दिस इज़ बेस्ट। अगर आपको जानना है तो मैं आपको भी बता देता हूँ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल है। तो जो एक ऐसा टूल जिसको मैं ना वर्ल्ड नंबर 1 की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, कि वो एक ऐसा टूल बना दिया उस कंपनी ने कि इट्स अनबिलीवेबल। उसका नाम है freepik.com। PIK.com। उस टूल के अंदर यू कैन फाइंड लिटरली एवरीथिंग। ओके। यू कैन क्रिएट AI इमेजेस, और AI इमेजेस बनाने के लिए भी दुनिया के बेस्ट मॉडल्स उसके अंदर डाल दिए उन्होंने। फ्लक्स डाल दिया है, मिस्टिक डाल दिया है, रनवे डाल दिया, सोरा डाल दिया, सी डांस डाल दिया। एवरी बेस्ट मॉडल इन द वर्ल्ड इज इनसाइड फ्रीपिक। अरे वाह। वीडियो के जितने वर्ल्ड के बेस्ट मॉडल्स हैं, क्लिंग हो गया, रनवे हो गया, सोरा, VO3, या जो भी मॉडल्स हैं सारे के सारे फ्रीपिक के अंदर हैं। और ये टूल फ्री है या पेड है? ये फ्री नहीं है, ये लगभग 500 से 550 रुपये पर मंथ की कॉस्ट करता है। ज़्यादा नहीं, विच इज़ अफोर्डेबल, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। 500-700 रुपये महीने की कॉस्ट में आता है, और इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइक आपने ये एक टूल ले लिया, आई प्रॉमिस इसके बाद आपको और ज़रूरत ही नहीं है कोई टूल लेने की। ऑसम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज, सो मेनी टूल्स। एंड आई थिंक पर्सनली आई लव द पार्ट दैट यू नीड टू रिसर्च एवरी डे। उसके बिना आज की डेट में जिंदगी में गुजारा नहीं होगा। कुछ भी उसको अपनी जॉब की तरह ही मान के चलो। जॉब की तरह भी तो 8 घंटे बैठ के आते हो ना, आप टिक 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 करे जा रहे हो, वहाँ पे पता भी नहीं क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं। यहाँ तो खुद का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो यार। 1 घंटा लगा दो रोज का, पढ़ लो कुछ। सो 2 से 3 साल के टाइम में यू कैन कम्प्लीटली टर्न अराउंड योर लाइफ। करेक्ट है ना। फिर कोई लोन नहीं होगा, एंड यू कैन एक्चुअली लिव ऑन कैश। ठीक है, सो लेट्स मेक मनी, लेट्स गो शॉपिंग टुगेदर। आई थिंक आई ऑलवेज से टू पीपल, ओके, काम करो, पैसा कमाओ, लेट्स गो शॉपिंग। राइट, बिकॉज उसमें बहुत मज़ा आता है ना। अल्टीमेटली अपनी कमाई उड़ाने में मज़ा भी बहुत आता है। करेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड एज वेल। इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद कुलवंत, ही इज़ अवेलेबल ऑन @Kulwant Nagi on Facebook, Instagram, YouTube, everywhere he's available. Very easy to search man on Google itself, right? You will find a lot of articles, a lot of things. Yes. Contact him, attend the webinar, buy his course if you wish to, and I think you can start an amazing journey. And I think a single man army business कैसे बनाते हैं, अगर आपको लगता हो कि आप टीम मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास ऑफिस नहीं है, so this is one thing I think you need to learn, and he will teach you all the systems as well. And a mentor who has spent 15 years on deep research every day, and वो आपको जो सिखा सकता है ना, वो आपके 15 साल सेव कर देगा। राइट, 100%। है ना। जैसे आपकी और मेरे भी किसी ने थोड़े बहुत साल तो सेव किए होंगे, कुछ ज्ञान देके, यू नो, थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करके। सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। If you would like to have any questions, do drop in the comments. How did you like the podcast? Tell us in the comments. And if you like the Success Brew merchandise, you will again find a link in the comment box. Do buy the merchandise, share a picture with us, we'll feature you on our Instagram page. Thank you so much. Awesome.